शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। Good morning and warm welcome. So last time when we were closing the session, Nisha ji ne she asked me a question. सच्चरित्र में अक्कलकोट महाराज करके उल्लेख है in at few places. So whether it is the same as स्वामी समर्थ? Yes. अक्कलकोट महाराज का जहाँ जहाँ भी उल्लेख हुआ है, it basically refers to स्वामी समर्थ only. उस जमाने में he was more popularly known as अक्कलकोट महाराज. स्वामी समर्थ ये नाम अलग अलग phase of ages, phase of years में उनको they generally get attached with different names. So those days I think he was called more popularly as Akkalkot Maharaj. There have been instances where Akkalkot Maharaj actually has told, Swami Samartha has told कि मैं यहाँ पे हूँ नहीं वहाँ पे हूँ, right? वहाँ पे दर्शन लीजिए या वहाँ पे जाइए. तो I was this few years ago, okay, I remember narrating this story to somebody and that person asked me, does that mean that that Swami Samartha is no more there in Akkalkot? ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, सर्वव्यापी. So he is also in Akkalkot. Of course he is in Akkalkot because उनका समाधि वहाँ पे है. It is only to show that मैं अभी वहाँ पे भी हूँ, just to show that they all are a part of the same तत्व, right? गुरु तत्व के ही भाग है. अभी मैं वहाँ पे हूँ मतलब he is alive and he is in avatar mode there. So that is why he probably guided a few devotees there so that they get the bhagya of seeing them in Sadeha form. So it only means that यही तत्व वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया है. And that is also the belief that दत्त परंपरा में the belief is that दत्त गुरु के बाद जैसे नरसिम्हा सरस्वती ने अवतार लिया, श्रीपाद श्री वल्लभ नरसिम्हा सरस्वती, and then Swami Samartha, Gajanand Maharaj, Sai Baba, okay, they are all considered, Tembe Maharaj, they all are considered a part of the same lineage, okay. अपने अपने संप्रदाय के अनुसार people try to make Baba himself, right? I mean, people who are Shiva worshippers will say Shiva Swarup, people who are worshippers of Datta will say is Datta Swarup. So basically it is the same form that has come in a different, the same principle that has come in a different form. साई बाबा का चरित्र बोलने बैठे हैं और उनका 11 वचनों के बारे में अगर बात न करें तो अधूरा रहेगा, right? These 11 promises that are famously called as the 11 promises, वो एक समय में बाबा ने ऐसे नहीं कि मैं आप बताता हूँ 11 वचनों को, ऐसे उन्होंने नहीं बताया है. अलग अलग लीलाओं के थ्रू जब मीनिंग when we try to get the meaning and the message that Baba gave verbally, the promises that he gave during performing that leela or after performing that leela, उसको संग्रह में करके those become the 11 famous promises. Those 11 promises I'll anyway go through. They are in Marathi. Okay, शिर्डी सज्याचे लागतील पाय तळती अपाय सर्व त्याचे. Says शिर्डी को एक बार किसी का पैर लग गया, somebody who comes and touches his feet on शिर्डी, उसके अपाय मतलब जो भी उसके संकट है वो सब निकल जाएंगे. माझ्या समाधीस पायरी चढेल दुःख हे हरेल सर्व त्याचे. समाधि के पैर मतलब समाधि के अगर समाधि मंदिर के पायदान अगर हम चढ़ते हैं हमारे सारे दुख मिट जाएंगे. I want you all to connect yourselves. All those who have gone to Shirdi I would want you all to connect. जो भी हमने किया है शिरडी बाबा के बारे में सोचते हैं या शिरडी जाते हैं, so you can just imagine the benefits that we've derived. अगर ग्रुप में ऐसे हैं जिन्होंने शिरडी नहीं गए हैं तो शिरडी जाने से क्या होगा is something that for them that there is also a message. जरी हे शरीर गेलो मी टाकून तरी मी धावीन भक्तांसाठी. मैं अगर ये शरीर छोड़ के भी चला जाऊं मेरे समाधि विल स्पीक. दैट इज व्हाट ही गोज ऑन टू से इन द नेक्स्ट वन.
नवसास माझा पावेल समाधी धरा दृढ बुद्धी माझ्या ठाई. Even after I've left this mortal form, I will always run for my devotees. I always, whenever I read this particular third promise, I always am reminded of a beautiful anecdote. Baba के समाधि होने के बाद, when he's almost breathed his last, okay, and is slumped. वो होता क्या है ना, दोपहर के वक्त, अभी लेने में कवर है समाधि इन डिटेल. दोपहर के वक्त तो सबको भेज देते हैं, जाओ अपना अपना खाना खा के आओ वगैरह. बट ही इज नॉट गुड, हिज हेल्थ इज नॉट गुड, एज इन हिज हेवी ब्रीदिंग हो रहा है, फिर भी वो लोगों को भेज देते हैं. तो उस समय क्या होता है ना, उनका हिज ब्रीथ इज लास्ट, ही इज ऑलरेडी लेफ्ट द मॉर्टल बॉडी. उस समय एक डिवोटी दौड़ते हुए आते हैं एंड ही कम्स टू नो दैट बाबा इज लेफ्ट. तो देवा करके चिल्लाते आते हैं, बाबा हुज ऑलरेडी ब्रीथ इज लास्ट. ओके, ही रेजेस हिज हैंड एंड ही सेज हाँ, ऐसा करके ही रेजेस हिज हैंड एंड ब्लेसेस, ओनली टू शो जरी मी शरीर गेलो मी टाकून तरी मी धावेन भक्तांसाठी, टू जस्ट टू प्रूव that he will come back and he will respond to our prayers, right? नित्य मी जिवंत जाना हेच सत्य, नित्य घ्या प्रचिती अनुभवे. बोल रहे मैं जिंदा हूं, रोज जिंदा हूं, अभी भी जिंदा हूं, इसका अनुभव लीजिए. शरण माझा आला आणि वाया गेला. दिस ब्यूटिफुल. शरण माझा आला आणि वाया गेला, दाखला दाखवा ऐसे कोणी. ही सेज मेरे शरण में आए और वो बर्बाद हुआ या उसका उद्धार नहीं हुआ, ऐसा एक भी इंस्टेंस मुझे दिखाइए. दैट इज द चैलेंज बाबा थ्रोज ऑन अस, राइट? जो जो मज भजे जैसा जैसा भावे तैसा तैसा पावे मी ही त्यासी. जिस भाव से हम उनको प्रार्थना करेंगे, हम अगर शिवा करके प्रार्थना करेंगे, दत्तगुरु करके प्रार्थना करेंगे, हम अगर उनको स्वामी समर्थ करके प्रार्थना करेंगे, वो उस तरह से हमको अपना अनुभव देंगे. तुमचा मी भार वाहीन सर्वथा, एक मिनट सॉरी, तुमचा मी भार वाहीन सर्वथा नवे अन्यथा वचन माझे, राइट? मैं तुम्हारा भार उठाऊंगा. हम जब ट्रेन से सफर करते हैं, अगर बहुत भार हो जाता है तो हम क्या करते हैं? वी कॉल अ कूली टू होल्ड आवर बैग्स, राइट? हु आर गुरुज? गुरुज आर बेसिकली दोज पीपल हु टेक अवे आवर बर्डन, राइट? सो बाबा सेज तुम्हारा भार मैं उठाने के लिए तैयार हूं, मुझे दे दीजिए, और ये मेरा जो वचन है वो गलत नहीं है. तुमचा मी भार वाहीन सर्वथा नवे हे अन्यथा वचन माझे. जाणा येथे आहे सहाय्य सर्वांस, मागे जे जे त्यास ते ते लाभे. He's saying I'll give everything, whatever you want, and it is the door that is open for all, caste, creed, gender, age, right? Rich, poor, no distinction seen, and that is how Dwarka Mai was established. माझा जो जहाल काया वाचा मनी, तयाच मी ऋणी सर्व काळ. लुक एट द करुणा ऑफ सेंट्स. वो बोल रहे हैं जो काया वचन वाचा और मन से मेरा ध्यान करेंगे, उनका मैं ऋणी हो जाऊंगा. He says, भक्तों का दास बन के रहते हैं गुरु. That is what they do. They become our. He says, I will become indebted to you. साई म्हणे तोची झाला धन्य, झाला जो अनन्य माझा पाई. मेरे जो शरणागति हो गए वो धन्य धन्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है. These are the 11 promises that Baba uttered at different points doing different leelas. It's a summary of all of Baba's message. As I've always told, Baba has been a very Krishna-like avatar. He always says कि आप मेरे शरण में आ जाओ, I'll take care, and that is what is very evident in these 11 promises. Today we are in the 5th session. I might probably have one more session or maybe one more session. एक जगह पे आके अपने को खत्म करना होगा. बाबा की लीलाएं कहाँ खत्म हुए हो? तो हमने तो we've just scratched the top. इतने सारे लीलाएं सिर्फ सच्चरित्र में हैं, बाकी किताबों में हैं, और आज भी हैं. So I just laid my hand last week on a book which I had forgotten that I had. जो बाबा के समाधि होने के बाद जो लीलाएं हुए हैं, जो लोगों को अनुभव हुए हैं, उसका एक there is a consolidation of some लीलाएं, वो भी कवर करने के लिए we might get a chance. So my suggestion is maybe part 1 of Baba we can end, after 1 or 2 sessions depending on how much I have in terms of material that I've collected. उसके बाद maybe after a few weeks we can even do a part 2.
बाहुबली का अगर पार्ट 2 हो सकता है, बाहुबली छोड़ो, ब्रह्मास्त्र जैसे पिक्चर अगर पार्ट 2 हो सकता है, तो आई थिंक बाबा की कहानी का तो पार्ट 2 होना बनता है। आई एम सॉरी अगर आप लोगों में से किसी को ब्रह्मास्त्र पसंद आया हो तो, बट कहने का मतलब ये है कि पार्ट 2 तो श्योर बनता है। आई मीन बाबा की कहानियों को तो पार्ट 2 पार्ट 3 भी हो सकता है। काफी लीलाएं लास्ट 4 सेशंस में भी कवर्ड। The last session में we covered few of them, and then some of them we covered regarding the how saints accept नैवेद्य। हम जो उनको ऑफर देते हैं, हम जो भोग चढ़ाते हैं, वो कितने प्यार से उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर सामने वाला भूल भी जाता है तो उसको याद भी दिलाते हैं। अगर हमसे कोई गलती भी हो गई हो तो सामने से वो प्यार से याद बोल भी देते हैं कि ऐसे ऐसे गलती हुई, दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन। हम कहीं से चढ़ा रहे नैवेद्य, वो कहीं बैठे हैं लेकिन उसको स्वीकार करते हैं। ये दिस तत्व को हम वी वर कवरिंग। सो देयर आर सम मोर स्टोरीज इन दैट सेम लाइन, आई थॉट आई विल कवर देम। चंदोरकर टेक्निकली बिलोंग टू, नाना साहेब चंदोरकर बिलोंग टू कल्याण। ओके, कल्याण इज अ स्मॉल सबब आउटसाइड मुंबई, अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई। तो कल्याण में उनका एक्चुअली अभी भी उनका वाड़ा है, अपरेंटली चंदोरकर वाड़ा करके उनका वाड़ा है, दैट इज व्हाट द चरित्र सेज। देयर हिज फैमिली वाज स्टेइंग। चंदोरकर वाज इन अ गवर्नमेंट जॉब, सो वो अलग अलग जगह पे नंदुरबार में थे, कभी पंढरपुर में थे, यूज्ड टू बी इन डिफरेंट, औरंगाबाद में थे, सो ही यूज्ड टू हैव पोस्टिंग्स, बट उनका मेन फैमिली वाज इन कल्याण। सो एक बार छुट्टी के लिए चंदोरकर साहब घर पे आए हैं, और छुट्टी के लिए ससुर जी आए हैं, तो दी डॉटर इन लॉ थॉट शी शुड आल्सो सेलिब्रेट। तो घर में चकली बन रहा है। ओके, चकलीज अलग अलग प्रांतों में अलग अलग स्नैक्स, ड्राई स्नैक्स का विशेषता होते हैं। साउथ में, तमिल में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ कैमुर्क, लुक्स वेरी सिमिलर टू चकली बट इट्स ऑसम वन। और यू हैव निपट्टू इन और कोडबोले इन कर्नाटका। वैसे चकली इज अ वेरी फेमस ड्राई स्नैक, part of the faral in Maharashtra, very tasty and awesome dish. Of course, every prant has its own. Gujarat and Rajasthan का तो कोई beat ही नहीं कर सकते in terms of dry snack. They have got so many to do. But there are quite a few famous ones in Marathi also. Okay, chakli, ladu, kanole, as it is called. Some call it as karanji. I was told that it is also called as kanole by certain communities. My sister-in-law, that is Maithili's brother's wife, she prepares awesome kanole. This Diwali she had got it. So I thought I'll again make a register saying that if she again prepares, she is listening to this. She happens to be our host. Okay, I think I should thank her without fail. Every Sunday, every session, she is the person who admits all of us into the meeting, which means she has to be present, right? So I think I owe a thanks to her. And if she makes kanole, I'm asking her to send it across Varam with VFast. Thank you. So ये चकली बना रही है डॉटर इन लॉ। तो चकली बनाते वक्त बाहर कोई आता है, दस्तक देते हैं, तो शी गोज एंड सीज, तो देयर इज अ लेडी बेगर। ओके, भिक्षा मांग रही है। तो लेडी बेगर है, शी बिलोंग्स टू चंदोरकर फैमिली, बाबा के इतने बड़े भक्त हैं, बेगर को तो खाली हाथ जाने देंगे नहीं, राइट? तो वो आती है, गरम गरम चकलियां बन रही हैं, थोड़ा सा चकली लेके आके उस दैट बेगर को शी गिव्स। दिस बेगर इज स्टिल वेटिंग। तो द डॉटर इन लॉ आस्क्स, माँ जी क्या चाहिए? तो बोलते और थोड़ा चाहिए। तो और जाके लेके आके देती है। वो फिर भी रुकी है, बोलते मुझे सारे चाहिए। हम लोग जब देते हैं ना भिक्षा, हम देते हैं, अच्छे मन से देते हैं, लेकिन हम में ना अहंकार फिर भी रहता है। ओके, मैं देने वाला हूं, वो लेने वाला है, ये ना कहीं तो सूक्ष्म रूप में हमारे मन में रहता है। हम किसी को अगर दान भी देते हैं तो हम बहुत बड़ाई करके बोलते हैं कि हाँ, मैं ना इस इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देता हूं, यहाँ पे जाके मैंने अन्नदान किया, वहां पे जाके मैंने कपड़ों का दान किया। ये हमारे मन में रहता है। ये सब अहंकार के अलग अलग रूप है। अच्छा कार्य कर रहे हैं, फिर भी हम अहंकारी, वो अहंकार दिखता है। और अगर गलती से भिखारी अगर ज्यादा मांग ले तो हमको we feel it odd, right? हम लोग को भी गुस्सा आता है, अरे दे रहे हैं, instead of being happy of whatever that person has got, और मांग रहा है। That is what we all feel, right? She was also nothing new, she was also same like us. तो उसको ना बुरा लगता है कि ये वापस क्यों मांग रहे हैं। देना, giving it to somebody without the attachment of giving, हम जनक महाराज थोड़ी हैं, we are not somebody like जीवन मुक्त जनक महाराज।
जनक महाराज, I'll quickly narrate that story. जनक महाराज का how he used to give. जनक महाराज ना, जनक महाराज is Sita Maiya's father, right? I'm sure all of you are aware of the basic story of Ramayana. जनक महाराज एक दिन suddenly finds himself on road. इतने बड़े राजा, right, emperor, suddenly finds himself on road struggling for food. He is hungry. आजू बाजू में रिलेटिव्स नहीं है, कोर्टियर्स नहीं है, सेना नहीं है, महल नहीं है, रास्ते पे है, कपड़े फटे हुए हैं. बोले ये ऐसे कैसे मेरा हालत हो गया, मैं किस तरह से जीता था, ये ऐसे कैसे हो गया मेरा, खाने के इतने वांदे हो गए, लाले हो गए मुझे, आई एम नॉट एबल टू इवन कलेक्ट फूड फॉर माई सेल्फ, आई एम सो हंग्री. ऐसे करके स्टार्ट्स गोइंग. वहां पे विलेज में उस जमाने में क्या करते थे ना, व्हेन फील्ड्स में वंस यू हार्वेस्ट दे विल नॉट टेक अवे एवरीथिंग. कुछ छोड़ के जाते थे पक्षियों के लिए, या भिक्षा लेने का एक उच्च वृत्ति करके एक पैटर्न है वहां पे ना. दे विल नॉट गो हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर भिक्षा. जो रास्ते पे पड़ा हुआ है ना उसको उठा के खाएंगे. ऐसे भी एक भिक्षा का एक फॉर्म है. तो उनके लिए छोड़ के जाएंगे. उस जमाने में वैसे था, सारा समेट के लेके नहीं जाएंगे, तो उनके लिए थोड़ा फील्ड्स में छोड़ के जाएंगे. तो ऐसा ना, ही कलेक्ट सम राइस, ऐसा मुट्ठी भरी कलेक्ट सम राइस. कहीं नदी से पानी कलेक्ट करते हैं, कहीं टूटा हुआ घड़ा है वहां से वो थोड़ा घड़े में ऐसा और राइस डाल के, पानी डाल के, पत्थर को ऐसा ये करके कहीं से वो ही स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ सम राइस. आज पता नहीं इतना क्यों मेरा हालत ऐसा हो गया है, थोड़ा सा चावल भी मिल जाए, नमक विमक दाल वाल छोड़ दो, थोड़ा चावल भी मिल जाए तो भी काफी, ऐसा उनका बुरा हालत हो गया है. यहां पे पक रहा है, चावल पक रहा है. जस्ट सम 10 meters away there are two bulls, okay, big bulls. They are fighting each other, they are locking their horns and they are fighting each other. लड़ते झगड़ते झगड़ते ना वो इनके तरफ आ जाते हैं जहां पे इन्होंने खाना या पका रहे हैं ना, उसके यहाँ पे आके दे जस्ट स्टैम्प ओवर इट एंड दे मिक्स इट इनटू द मड एंड गो. तो उन लोग लड़ाई करते करते वहां पे वो स्टैम्प करके चले जाते हैं. जनक महाराज को बहुत बुरा लग रहा है, आज क्या इतना भी नसीब में नहीं है मेरा खाना, ऐसे करके उनको बुरा लग रहा है. इतने में कोई आके उनको बुला रहा है, तो सडनली वेक्स अप एंड ही रियलाइजेस दैट ऑल ऑफ दिस वाज अ ड्रीम. ओके, he is sleeping comfortably on his bed in his महल and he wakes up and he sees himself that ये पूरा ड्रीम था. बट हम जब ड्रीम में रहते हैं ना, वो हमें उस समय वो साक्षात्कार, इस समय हमको वो रियलिटी लगता है. सो इज वेरी डिस्टर्ब कि ये क्या था ड्रीम, यू नो, इतना विविड ऐसे ड्रीम था. ही सडनली हैज दिस क्वेश्चन कि क्या वो सत्य है या ये सत्य है. हम जब माया में रहते हैं, भवसागर में रहते हैं, फिलोसोफर से दैट दिस आल्सो इज अ ड्रीम, राइट. हम स्लीप मोड में हैं, हम जानते नहीं है कि एक्चुअली हमको यहाँ पे रहना ही नहीं है, राइट. सो दिस आल्सो इज टेक्निकली अ ड्रीम. तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि क्या ये सत्य है या वो सत्य है जो ड्रीम में हुआ. तो ऐसे पेंसिव मूड में ना वो आते हैं एंड ही सिट्स इन द दरबार. सामने मिनिस्टर सब बैठे हैं एंड ही जस्ट पुट्स दिस क्वेश्चन टू द दरबार. ही सेज, क्या ये सत्य है या वो सत्य है. तो ये मिनिस्टर सब अस्टनिश्ड है, ये आज क्या हो गया महाराज को क्या ये सत्य है, क्या वो सत्य है, क्या है ये वो क्या है. मगर राजा है, पूछ नहीं सकते हैं, तो चुप बैठते हैं. दे डोंट आस्क हिम. सब लोग चुप बैठे हैं, नोबडी इज आंसरिंग. बट द राजा इज इन पेंसिव मूड, इज नॉट रियली द चीयरफुल पर्सन दैट ही ऑलवेज इज. उस समय ना अष्टवक्र करके एक ऋषि है, आप लोगों ने पुराण में नाम सुना होगा. अष्टवक्र इज कॉल्ड अष्टवक्र बिकॉज उनके बॉडी में देयर आर 8 डिफॉर्मिटीज. ओके, वो जब when his mother was pregnant with him, his father was doing वेदों का पारायण कर रहे थे. उनका उच्चार, वेदों का उच्चार गलत हो रहा था, तो every time it used to go wrong, the baby in the womb used to squirm. ये क्या गलत हो गया, ये क्या गलत हो गया. तो इस तरह से उन्होंने स्क्वर्म करने की वजह से उनके बदन में 8 वक्र आ गए थे. Okay, he was born with that. What a great rishi. Okay, he goes and at the age of 8 he goes and relieves his father. Okay, goes and fights on वेदों का, शास्त्रों का इतना ज्ञान, अमेजिंगली इंटेलिजेंट बॉय. तो अष्टवक्र आते हैं. अष्टवक्र आने के बाद वो 8 डिफॉर्मिटीज के साथ है ना, तो पैरों को खींच के, नॉट एबल टू वॉक हिमसेल्फ, ऐसा यू नो टेढ़ा मेढ़ा चलते चलते आ रहे हैं. ये दरबार वाले ना वो देख के हंस देते हैं. ओके, टेक्निकली वी शुड नॉट लाफ, बट जब ऐसे कुछ आ जाता है ना, तो उन लोग के मन में क्यों ऐसा आया पता नहीं, सडनली उन लोग ना हंस देते हैं. अष्टवक्र ना जनक महाराज को देख के उन लोग जितने जोर से ऐसे उतने डबल हंसते हैं. तो जनक महाराज पूछते हैं, आइए, उन लोग ने हंसा ये गलत है,
मगर उनका हंसने के लिए कुछ एक ऑब्जेक्ट है, देयर इज सम कारण, आप क्यों हंसे? तो अष्टावक्र बोलते हैं कि उन लोग हंसे मेरे विकृता पे और मैं हंस रहा हूं, कैसे राजा हो तुम, कितने विकृत लोगों के साथ बैठे हो, इसलिए मैं हंस रहा हूं आप पे। तो ये अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ ग्रेट ऋषि हु हैज कम। तो वो बोलते हैं कि मैं आपको एक सवाल पूछ सकता हूं? तो बोलिए, अष्टावक्र बोलते हैं हाँ पूछिए। तो ही हैज द सेम क्वेश्चन, बोलते क्या ये सत्य है या वो सत्य है? अष्टावक्र बोलते ये जितना सत्य है वो भी उतना ही सत्य है। तो जनक महाराज doesn't understand the answer. He says, what is this answer? तो अष्टावक्र ऋषि says, सवाल ढंग से पूछो तभी तो ढंग का जवाब मिलेगा। तो then he entirely explains the dream. अष्टावक्र says, my answer continues to remain the same. ये जितना सत्य है वो भी उतना ही सत्य है, ये जितना झूठ है वो भी उतना ही झूठ है। तो जनक महाराज clicks. He says, this is a great rishi. He says, he falls at his feet and he says, मुझे आप अपना चेला बना लीजिए, डिसाइपल बना लीजिए। तो अष्टावक्र बोलते हैं फॉर दैट यू विल हैव टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग, अपना पूरा ट्रेजरी, अपना राज्य सब तुम्हें अर्पण करना होगा मेरे नाम पे, क्या तुम कर सकते हो? तो बोलता है हाँ मैं कर सकता हूं। तो बोलते मुझे दृष्टांत दीजिए। तो पूरा ट्रेजरी ही ब्रिंग्स आउट इनटू द दरबार, बोलते हैं सब का सब जो भी अपना खजाने में है सब लेके आओ। एंड ही सेज, पानी देके बोल देते हैं मैं आज से अर्पण कर दिया, आई हैव गिवन इट ऑफ टू यू। ही गिव्स अवे एवरीथिंग टू अष्टावक्र एंड ही सेज नाउ टेक मी एज योर गुरु। Ashtavakra is happy, he blesses. At that moment, there is a Brahmin. I'm sorry, it's a little long one, but I just wanted to make this point कि दान देना, okay? मतलब एक जीवन मुक्त, मतलब हम जब दान देते हैं तो हमारे मन में रहता है कि मैं दे रहा हूं, that itself is an अहंकार। अच्छा कार्य कर रहे हैं पर फिर भी अहंकार से कर रहे हैं। But look at जनक महाराज, एक ब्राह्मण comes, a poor Brahmin. That Brahmin, he says कि राजन मेरा माई सन इज ग्रोन, नाउ 7 years old, उसका उपनयन संस्कार करना चाहता हूं, जनेऊ का संस्कार करना चाहता हूं। उस जमाने में इट वाज अ प्रथा, पुअर ब्राह्मण्स दे विल कम टू द स्टेट, दे विल कम टू द गवर्नमेंट एंड दे आर सपोज टू हेल्प। उनका स्वधर्म में हेल्प करना ये गवर्नमेंट के राज्य का ड्यूटी था। आज होता नहीं है, बट दैट इज द ड्यूटी, दैट इज द राज्य का वो एक ड्यूटी था। तो ही कम्स एंड आस्क्स कि एक थोड़ा सा रुपए अगर आप दे देंगे तो मदद होगा। जनक महाराज इज साइलेंट, इज नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग टू हिम। वो उनको लगता है उन्होंने सुना नहीं, तो वो वापस बोल रहे हैं कि मुझे मदद चाहिए था, अगर आप कुछ भी दे दें, पैसा ही चाहिए ऐसे नहीं, द्रव्य मतलब द्रव्य के रूप में यानी पदार्थ भी दे दें तो भी मुझे अच्छा रहेगा। जनक महाराज इज नॉट आंसरिंग। वो ना नीचे देखता है, पूरा का पूरा खजाना कोष वहां पे पड़ा हुआ है, राइट? इट्स द सेम टाइम व्हेन अष्टावक्र महाराज को दिया है उन्होंने, वहां पे पूरा पड़ा है। वो राजा से पूछ रहे इतना सारा आपका धन है, इसमें से 2 गोल्ड कॉइन्स नहीं दे सकते राजन आप? उनको ना गुस्सा आ जाता है ब्राह्मण को, धिक्कार है ऐसे राजन पे, कि कैसे आप यू कांट गिव दिस। अष्टावक्र ऋषि ना बाजू में खड़ा रहे ना, ये सब देख रहे हैं। वो जनक को पूछते हैं महाराज ये कुछ मांग रहे हैं, आप दे क्यों नहीं रहे? आप तो जवाब भी नहीं दे रहे हैं, दे क्यों नहीं रहे इनको? जनक महाराज से, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो सारा आपको अर्पण कर दिया। That is the time Ashtavakra Maharishi becomes very happy. This was just a scene. That Brahman was just a leela by Ashtavakra to test. इन्होंने जब बोला नीर को हाथ से लेके उन्होंने अर्पण कर दिया कि मैंने आज से आपको त्याग कर दिया, तो लेवल ऑफ त्याग, okay, he was testing. The moment Brahman asks, ideally he should have said हाँ ले लो, मैं कुछ बात कर रहा हूँ ये ले लो, right? Which means वो अहंकार अभी भी है कि एक्चुअली उन्होंने दिया नहीं है। उन्होंने सच्चे मन से दे दिया था अष्टावक्र महर्षि को, उन्होंने जब दे दिया तो दे दिया, ही नो मोर ओन्स इट। सो ब्राह्मण आके मांग रहा है, ही इज एक्सपेक्टिंग अष्टावक्र विल आंसर, इसलिए ही इज नॉट आंसरिंग। तो ऐसे जनक महाराज थे, वो तो ऑफ कोर्स जीवन मुक्त थे, हम लोग तो वो लेवल पे है नहीं। जनक महाराज एक गृहस्थाश्रमी थे। व्यासा, व्हेन हिज सन शुकमुनि हु वाज अ बॉर्न जीवन मुक्ता, वो आके पूछते हैं मुझे गुरु चाहिए, तो बोलते हैं मैं नहीं गुरु बन सकता हूं, तुम्हारे लिए परफेक्ट गुरु जिस जनक महाराज, वो गृहस्थाश्रमी, वो नॉट इवन अ सन्यासी, उनसे जाके सीखो, इज व्हाट ही सेज। इस लेवल के थे जनक महाराज। बट हम हैं, राइट? आई जस्ट वांटेड टू टेल दैट स्टोरी कि दान देना कैसे होता है। तो ये उसको गुस्सा आ जाता है, दैट डॉटर इन लॉ बिकम्स अनहैप्पी एंड शी इज सेइंग हम दे रहे हैं, ये हद से ज्यादा मांग रही है, सारा का सारा चकली दूंगी तो ससुर जी को क्या दूंगी, दैट इज द वरी दैट शी हैज। तो ये बाहर आर्ग्यूमेंट चल रहा है, चंदोरकर साहब बाहर आ जाते हैं। चंदोरकर साहब बाहर आके वो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है।
तो वो बोलते हैं आप तुम्हें जितना लेना है ले लो, उतना ही हम देने वाले हैं, गुस्सा कर देते हैं। तो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे सारा का सारा चकली चाहिए। तो बोलते हैं तुम लेके अभी चुपचाप जाते हो या मैं वहां पे जो बाहर गुरखा सिक्योरिटी बैठा है उसको आके बोला के धक्के मार के बाहर भेजो। दिस इज व्हाट चंद्रकर सेज। तो दैट लेडी सेज देना है तो दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए, धक्का मारने की क्या जरूरत है। ऐसे करके वो चले जाती है। ये एक समय में हो गया। कुछ दिनों के बाद चंद्रकर को शिरडी जाने का मौका मिलता है, तो शिरडी जाते हैं। शिरडी जाने के बाद चंद्रकर को बाबा दूर से देखते हैं और मुंह फेर के बैठ जाते हैं। सबके साथ बात करें, चंद्रकर के साथ बात नहीं कर रहे हैं और गुस्से से देख रहे हैं। चंद्रकर को पता चल जाता है बाबा गुस्से में है, कुछ तो गड़बड़ गड़बड़ हो गया है, उनको पता चल जाता है। तो नमस्कार करते हुए बोलते हैं बाबा ऐसे आप मुझसे रूठे हुए क्यों हो, आप मेरे से कुछ गलती हो गई तो माफ कर दीजिए। वो बोलते हैं मैं घर आया था, तुम दे रहे थे, तुम नहीं दोगे बोलते तो भी ठीक, धक्के मार के मेरे को बाहर भेजोगे, यही मेरी सीख है और इतना ही तुमने सीखा। चंद्रकर इज नॉट एबल टू रिलेट। 2-4 महीने गुजर गए हैं, चंद्रकर इज नॉट एबल टू रिलेट कि बाबा ये मैंने कब किया आपको। और हम जब बोलते हैं कि मैं आया था, हम क्या सोचेंगे कि बाबा खुद आए थे घर पे। तो बाबा बोलते बाबा आप कब आए थे और मैंने आपको ऐसे कैसे कर सकता हूं। बोलते नहीं नहीं याद है कल्याण में एक बूढ़ी औरत आई थी और चकली लेने के लिए आई थी, नहीं देना था तो नहीं देना था, इट इज ओके, बट तुमने तो बोला कि सिक्योरिटी गार्ड से तुम धक्का मार के मेरे को बाहर भेजोगे। तो ये रियलाइजेस तो क्या ये बहुत बड़ी गलती हो गई, बाबा माफ कर दीजिए, ऐसे दोबारा नहीं होगा। बाबा ना विल कीप टेस्टिंग हिज डिवोटीज टाइम एंड अगेन, और वो कोई भी स्वरूप में विल कीप टेस्टिंग कि मैं जो जो सिखा रहा हूं वो लोग अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं कि नहीं। ही विल कीप टेस्टिंग ऑन ईच ऑफ हिज टीचिंग्स। ऐसे ही ना एक देयर इज अ वेरी हास्य रूप लीला। शिरडी में ना संडे का बाजार लगता था। ये अलग अलग जगह पे लगता है, हमारे थाने में भी ना बहुत दिनों तक थर्सडे का बाजार लगता था, गुरुवार के दिन बाजार लगता था। वो क्या होता है, every week, every day of a week they will be at one place. So Sunday if suppose it's Shirdi, Monday could be Kopargaon, or Tuesday could be Rahata. I say, they will keep going. Every day they'll keep going. So every day of the week they'll keep going, and every Sunday it will be at Shirdi. तो लोगों का तांता होता था, लोग आते थे, खरीदते थे. A lot of people used to come and buy stuff, and there'll be a lot of eating fast food counters and stuff like that. तो एक बार क्या होता है, एक बार संडे का बाजार लगा हुआ है। नॉर्मल डेज में भी द्वारका माई में दोपहर के वक्त थोड़ा भीड़ रहता था, संडे के वक्त तो इट यूज्ड टू बी रियली बैड। लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू कम एंड टेक बाबा's दर्शन इन द लास्ट फ्यू इयर्स बिफोर हिज समाधि। तो श्यामा और बुटी और काका साहब दीक्षित, वामन राव करके एक और डिवोटी, ऐसा सब खड़े हैं बाबा के आजू बाजू में, खड़े हैं बाबा के साथ बात कर रहे हैं। हेमंत पंत दाभोलकर हु रोट साई सच्चरित्र, वो बाबा के पैर को मसाज करते हुए, बाबा को ऐसे मसाज करते हुए सामने बैठे हैं। ओके, श्यामा हेमंत पंत को देखते हैं और उनके स्लीव में से ऐसे 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 कुछ निकालते हैं। एंड ही सेज, श्यामा सेज टू हेमंत पंत, अरे ये तो चना का दाल है, चना का दाल खाते हुए आए हो क्या बाजार से। तो ही इज ऑल्सो वंडरिंग कि ये कहां से आ गया, इज जस्ट डस्टिंग, इज नॉट आंसरिंग हिम। तो उतने में ना बाबा ना मिस्चीवियसली ऐसे हेमंत पंत को देखते हुए वो बोलते ये पट्टा है ना, ये अकेले अकेले खाने का इसको आदत है, ये बाजार गया है और वहां से ना चना खाते चबाते आया, मैंने देखा इसको। ऐसे करके बाबा बोलते हैं। तो ये जोक होने के बाद ना हेमंत पंत एक्चुअली हैज नॉट गॉन टू द बाजार एट ऑल। ग्रुप में होते वक्त हम लोग ने किसी एक के ऊपर जोक करते तो उसको बुरा लगता है ना, तो ऐसा उनको बुरा लग जाता है। क्योंकि उनको बुरा एक लगता है क्योंकि बाबा ने ऐसे जोक किया और दूसरा बाबा ने झूठ बोला कि बाजार गया ही नहीं, वो चना दाल उन्होंने खाया ही नहीं है, राइट। ही हिमसेल्फ इज सरप्राइज्ड कि चना दाल उनके कोट में लगा कैसे। तो बोलते बाबा आप कुछ भी क्या बोल देते हैं, मैं नहीं गया, बाजार में नहीं गया, मैं कैसे, और अकेला तो मैं कभी खाता नहीं हूँ, मेरे साथ जब भी लोग रहते हैं तो उनको बांट के मैं खाता हूँ, ऐसे कैसे आप आरोप करते हैं मेरे पे। बाबा हंस देते हैं, he pats him on his back and he says, हाँ नहीं तुम जब भी लोग रहते हैं बाजू में तब तो तुम श्योरली शेयर कर लेते हो, अकेले होंगे तो क्या करोगे, किसको दोगे ना। ऐसे करके हंसते हैं। थोड़ी देर के बाद बोलते हैं, मैं जब भी खाते हो क्या तुम मुझे अर्पण करते हो, मुझे देते हो, मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। ये सुन के ना हेमंत पंत रो देते हैं। सी हम लोग ना गुरु को मिलने जाते हैं,
गुरु को मिलने जाने के बाद हमारा प्रार्थना क्या रहता है? बाबा या जो भी गुरु को मिलने जाते हैं बोलते हैं आपका करुणा कटाक्ष हम पे हमेशा रहने दो, आप हमारे साथ हमेशा रहिए। हम प्रार्थना तो कर लेते हैं, राइट? हम खुद प्रार्थना कर देते हैं और भूल जाते हैं। सामने गुरु आशीर्वाद देते हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ, वो हमेशा रहते हैं, वो उनका वचन हमेशा पालते हैं, राइट? हमको दिखते ही है बट हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बाबा सेज मैं तुम्हारे साथ हूं, which means he is there, उसका एहसास हमें होना चाहिए, राइट? हम प्रार्थना करके भूल जाते हैं। हम तो जैसे हम नैवेद्य करते हैं वैसे हम प्रार्थना भी करते हैं। नैवेद्य इसी तरह से करते हैं कि कोई ले ना हमको ही मिले, उसी तरह से हम प्रार्थना भी करते और भूल जाते हैं। तो ये एहसास ना हिम्मत पंत को हो जाता है सडनली। खुद मैंने प्रार्थना किया था कि बाबा मेरे साथ रहो, मैं भूल गया, बाबा ने याद दिलाना पड़ा, बाबा हैड टू रिमाइंड कि मैं तो तुम्हारे साथ हूं, जब भी खाओ हमेशा मुझे अर्पण करके खाओ। This is the second teaching, right? He suddenly realizes whenever you do whatever, right? हम लोग घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी चालू करते हैं, ऑफिस का काम चालू करते हैं, मीटिंग, खाना पकाने के लिए लेते हैं, खाना खाने के लिए लेते हैं, हमेशा एक वन थॉट टू योर गुरु और टू द गॉड कि ये तुम्हारे लिए अर्पण है, दिस इज फॉर यू। ऐसे करके करेंगे ना तो एवरी एक्शन ऑफ आवर्स विल बिकम हिज, ही विल टेक केयर ऑफ इट एंड देन इट विल नॉट बी आवर्स। दिस इज वन। द सेकेंड बेनिफिट आउट ऑफ दिस इज फिर हम ना कभी गलत नहीं करेंगे, हमारे मन में गलत ख्याल नहीं आएगा, हमारे मन में किसी के बारे में बुराई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि व्हेन आई एम ऑफरिंग दैट थॉट टू द गॉड कि बाबा ये आपका है, तो देन वील आल्सो एंश्योर दैट वी टेक केयर ऑफ द चाइल्ड बिकॉज़ बाबा इज ऑलरेडी सीइंग अस, राइट? तो ये 2-3 एहसास उनको हो जाता है क्षण भर में एंड वो नमस्कार करके रो देते हैं। बाबा बोलते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आशीर्वाद करते हैं, he says don't worry, I'm always there with you, but remember whenever you have something first offer to me, that is what he says. Few stories on how Baba gave darshan in different forms, in the form in which उन्होंने जिस तरह से उनके गुरु को पूजा किया था उस तरह से, ओके, कैसे उन्होंने दर्शन दिया, उसके बारे में विल कवर अ फ्यू स्टोरीज। डॉक्टर पंडित करके देयर वाज अ डॉक्टर, वो पहली बार बाबा के बारे में उन्होंने सुना, शायद दासगणु से सुना हो, चंदोरकर से सुना हो। ही कम्स टू शिरडी आते हैं, शिरडी आने के बाद बाबा का दर्शन लेते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं बाबा को देख के, वो सानिध्य को देख के, वो हंसना, उनका प्यार से बर्ताव करना, that the way he used to deal and bless people, he is in love, he really feels like staying there for some time। तो कुछ दिन वहाँ पे रुकते हैं, रुकने के बाद रोज पूजा में he used to participate in the puja, he used to participate in the आरतीज। तो एक दिन दोपहर के वक्त सब लोग पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए बैठे हैं। दादा भट्ट करके एक डिवोटी था, वो पूजा कर रहे हैं। बाबा का पूजा ना एक डिस्टेंस में से होता था, ओके। अच्छा, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। फॉर्मल पीठाधिपति को तो हाथ लगा ही नहीं सकते हैं, वो तो डिस्टेंस में ही रहते हैं, लाइक कांची महापरिवार या श्रृंगेरी परिवार या शकटपुरा परिवार एंड ऑल, यू कैन नॉट इवन गो। तो बीच में बैरिकेड डाल देंगे क्योंकि गलती से भी कोई सामने आके उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट क्लीनलीनेस एंड प्योरिटी, दिस इज, वो क्या होता है ना, बाबा वगैरह ऑल्सो यू कैन नॉट टच विदाउट परमिशन, ओनली सम पीपल वर अलाउड, और सम पीपल वर अलाउड, लाइक फॉर एग्जांपल इन द अर्लियर स्टोरी हिम्मत पंत वाज डूइंग मसाज टू बाबा, वो उन्होंने उस वक्त उनको बोला होगा या अलाउ किया होगा, इसलिए वो हाथ लगा पाए। वो तपस का देह है, राइट? 1000 सूरज का तेज रहता है उसके अंदर, राइट? दैट हीट इज समथिंग वन कैन नॉट जस्ट बेयर, वो उसको शांत करके हमारे साथ रहने के लिए, उसको कंट्रोल करके हमारे साथ रह रहे हैं, राइट? Otherwise, without permission, you go and touch, you will just get burned. रामकृष्ण परमहंस has actually put down his experiences। अलग अलग साधना जब करते थे तो बदन किस तरह से उनका जलता था उसके बारे में उन्होंने व्याख्यान दिया है, राइट? एक बार 1964 में ना ज्ञानानंद स्वामीगढ़ तपोवन में है, उनको मिलने के लिए एक और स्पिरिचुअल गुरु आते हैं मिलने के लिए। As soon as he enters तपोवन was his ashram, तपोवन में एंटर करते ही he realizes कि यहाँ परब्रह्म स्वरूप बैठे हैं, राइट? मनुष्य रूप में है लेकिन ये मनुष्य है नहीं, या मनुष्य है, he is some other पदार्थ here। He realizes that because he also was a spiritual guru। वो चलने की कोशिश करते हैं, he suddenly stops। वो एक असिस्टेंट के साथ आए हैं, वो असिस्टेंट बोलते हैं गुरु क्या हुआ, आप चल क्यों नहीं रहे? बोलते 1 मिनट रुको, ओके, यहाँ पे देयर इज अ होल पावर फील्ड हियर, आई कैन नॉट जस्ट वॉक लाइक दैट। वो थोड़ा देर रुकते हैं, आश्वासन करके लेते हैं, देन ही वॉक्स टुवर्ड्स स्वामीगढ़। स्वामीगढ़ दूर से हंस रहे हैं बिकॉज ही नोज अ स्पिरिचुअल पर्सन हैज कम। दैट गुरु ना, ही कम्स एंड
टचेस स्वामी गर्ल्स फीट एंड डज नमस्कार. स्वामी गर्ल ऐसे थे जिनको हाथ लगा सकते थे, वो टच करके ना नमस्कार करते हैं. वो असिस्टेंट क्या करता है, उनको लगता है कि यही पद्धति है, तो वो भी टच करने के लिए, नमस्कार करते वक्त ना टच करने के लिए आते हैं, तो ये गुरु रोक देते हैं, नहीं नहीं तुम मत हाथ लगाओ, तुम उसको सह नहीं पाओगे. वो जो तप है, वो जो हीट है ना, यू कैन नॉट, यू गेट बर्न्ड. उनका मीटिंग वगैरह होने के बाद, मिलने के बाद, बाहर निकलते वक्त कुछ डिवोटीज उनको छोड़ने के लिए आते हैं, दैट स्पिरिचुअल गुरु को. उनको ही सेज, ये भगवान खुद नीचे उतर कर आए हैं, इज इन एन एक्सट्रीमली राइपन्ड स्टेज, जो मांगोगे दे देंगे, इस स्टेज में है. विलंब ना करें, तमस मत करो, जितना जल्दी हो सके उतना अनुग्रह ले लो. ये शरीर में सिर्फ 10 साल ही रहेंगे, छोड़ के चले जाएंगे. व्हाट इज सेज दैट इट वाज राइट इन 1974 ज्ञाना स्वामीगल टुक समाधि. तो ये शरीर को हाथ लगाना ना, वो अमानुष्य शरीर है ना, वो इट इज अ वेरी डिफरेंट फॉर्म दैट हैज कम डाउन फॉर अस. तो ऐसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकते हैं, ओनली सम पीपल वर अलाउड. वन ऑफ देम वाज मालसापति. पूजा करते हुए कभी कभी मालसापति को अलाउ करते थे चंदन को गले में ऐसे लगाने के लिए. ओके, अदरवाइज पीपल वर नॉट अलाउड टू टच हिम अनलेस ही परमिटेड. तो डॉक्टर पंडित, दादा भट्ट, सब लोग पूजा कर रहे हैं, इनका पूजा चालू है. डॉक्टर पंडित ना एक क्षण भर में क्या करते हैं, दादा भट्ट के हाथ में ना ऐसा थाली है, उसमें चंदन है, कुंकू है, उदी है, दिया है, ये सब है. एक स्प्लिट सेकेंड में, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, ही जस्ट पिक्स द चंदन, ऐसे हाथ में चंदन लेते हैं, स्ट्रेट ही गोज एंड वॉक्स, स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ बाबा. आंखों से आंसू आ रहे हैं, बदन में पूरा रोमांच हो रहा है, एंड ही डजंट नो व्हाट इज डूइंग. सामने खड़े हैं, हंस रहे हैं, बाबा भी सामने से हंस रहे हैं. इन स्प्लिट सेकेंड वो चंदन को लेके ना बाबा के माथे पे ऐसे त्रिपुंद्रा लगा देते हैं. एवरीबॉडी शॉक्ड, विदाउट परमिशन. एक क्या हो गया डॉक्टर पंडित को, अब तक तो ठीक थे, ये जाके उन्होंने चंदन लगा दिया. अब बाबा कैसे रिएक्ट करेंगे पता नहीं है. बाबा इज स्माइलिंग, बाबा इज नॉट इवन रिएक्टेड, ही जस्ट रेजेस हिज हैंड, ब्लेसेस. आरती वगैरह हो जाता है, सब लोग निकल जाते हैं. वो दादा भट्ट को ना रहा नहीं जाता है, डॉक्टर पंडित अभी पहले बार आए हैं, ये जलन ना सब में होता है, राइट. डॉक्टर पंडित तो अभी भक्त हुए हैं, अभी आए हैं, पहले बार आए हैं, हम कितने दिन से कर रहे हैं, हमको तो हाथ लगाने देते नहीं है, और ये हाथ लगा के चंदन माथे पे लगा दिया और चले भी गए. बाबा ने कुछ बोला भी नहीं. वो आके बाबा को मिलते हैं, बोलते हैं बाबा आपको हाथ लगाने का परमिशन नहीं है, ये तो चंदन लगा के चले गए, आप तो कुछ बोले भी नहीं. तो बोलते मैं क्या बोल सकता हूं दादा भट्ट, वो मुझे देख ही नहीं रहा था, वो अपने गुरु रघुनाथ महाराज को देख रहा था. ये उनका संप्रदाय में अपने गुरु को माथे पे लगाने का वो उनका प्रैक्टिस है, मैं कैसे उनको रोक सकता हूँ. That is what बाबा says. तो he takes that answer and goes, but हम है, राइट. हमको ना बाबा ने बोला तो भी वो मानेंगे नहीं. वो जाकर डॉक्टर पंडित से भी पूछते हैं, बोलते हैं कि तुमने जाके लगा दिया चंदन, ऐसे कैसे. वो बाबा जनरली हाथ लगाने देते नहीं है. बोलते नहीं मैंने उनको नहीं लगाया, मैं वहां पे खड़ा था, मेरे को मेरा गुरु रघुनाथ महाराज ने दर्शन दिया. हमारे में ऐसा प्रथा है कि हम अपने गुरु को दर्शन देते हैं तो चंदन लगाते हैं, मैंने अपने गुरु को लगाया. राइट. तो दिस इज व्हाट बाबा इज. बाबा ना वो, अगर हम दत्त गुरु माने तो दत्त गुरु का अवतार में दर्शन देंगे, विठल बोले तो विठल, शिवा बोले तो शिवा, कितने को लोग तो राम के रूप में अवतार दर्शन दिया है. हम माँ बोलेंगे तो माँ के जैसे, पिता बोले तो पिता, दोस्त बोले तो दोस्त, बेटा बोले तो बेटा भी बनेंगे. भाईसा माँ के लिए तो बेटा बन गए हो, राइट. साईं बाबा की आरती में ना देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टैंजा. ओके, this is how Aarti goes. I'll just sing part of it till I come to that stanza. It says, Aarti Sai Baba, Saukya Datar Jiva, Charanar Jatali, Dyava Dasa Visava, Bhakta Visava, Aarti Sai Baba. जाळुनिया अनंग, सस्वरूपी रहे दंग, मुमुक्ष जना दावी, निज डोळा श्रीरंग, डोळा श्रीरंग, आरती साई बाबा. जयामनी जैसा भाव, तया तैसा अनुभव, दाविसी दया घना, ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव,
आरती साई बाबा, जया मनी जैसा भाव तया तैसे अनुभव, दाविसी दया गना, अरे दया के सागर ऐसे तुम दर्शन देते हो, क्या तुम्हारी माया, ऐसे दैट इज दी स्टैंजा। जया मनी जैसा वो, जिसको जो मन में जैसा भाव है वैसा तुम अनुभव देते हो। किसी ने अगर गुरु रघुनाथ महाराज को देखा तो उनको वैसे अनुभव मिला। देयर इज वन मोर स्टोरी ओके ऑफ दैट काइंड। एक मूळे शास्त्री करके एक नासिक में थे, वेरी ऑर्थोडॉक्स एंड एन अग्निहोत्री। अग्निहोत्री मतलब, अग्निहोत्र ब्राह्मण मतलब क्या होता है कि घर पे एक धुनी जलाया जाता है, अग्नि को पालते हैं ओके, और वो दिन भर कंटिन्यूसली यू हैव टू कीप ऑन बर्निंग इट। सो बाबा हिमसेल्फ वाज लाइक अग्निहोत्री, राइट? धुनी तो द्वारका माई में अभी भी जल रहा है। तो ऐसे उनका वो अग्निहोत्र फैमिली था, वेरी ऑर्थोडॉक्स एंड वेरी स्ट्रिक्टलर टू द रूल्स, शास्त्रों के ज्ञात, वेरी गुड, शास्त्र ने जैसे बोला था उस तरह से जीने वाले एक ब्राह्मण थे। भगवान पे विश्वास था, भगवान के अवतारों पे, संतों पे उतना ज्यादा विश्वास शायद था नहीं। उनका एक गुरु थे, लेकिन गुरु गोलब करके उनके एक गुरु थे, वो उनको बहुत मानते थे और उनके मन में ऐसा था कि मेरे गुरु ही सब कुछ है, दूसरे गुरुओं के बारे में ही यूज्ड टू नॉट थिंक मच। एक गुरु अभिमान होता है, इसमें बुराई नहीं होता है, लेकिन वो दैट शुड नॉट बिकम अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओके, दैट इज वेयर द ट्रिक लाइज। सारे गुरु एक ही तत्व के अलग अलग रूप है, ये जानते हुए अपने गुरु को आप पूजिए। कोई और गुरु दिखता है तो भी नमन कीजिए, यू बो डाउन टू हिम, यू डोंट हैव टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद दैट गुरु। नहीं मेरा गुरु ही श्रेष्ठ है, ये वाला गलत चीज है, राइट? तो वो ना बापू साहेब बुटी, हु इज द नागपुर ट्रेडर, वेरी रिच मिलेनियर, उनके दोस्त थे वो ओके। तो बुटी आए हुए शिरडी टू नासिक इज अबाउट 90 किलोमीटर्स, राइट? तो ये नासिक में रहते थे, उनको पता चलता है कि उनके दोस्त आए हैं, उनको कुछ काम भी था, उनसे कुछ काम करवा के भी लेना था और इसी बहाने भेंट भी हो जाए, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि मैं आ जाता हूं आपसे मिलने के लिए। तो बुटी को मिलने इस हेतु आते हैं शिरडी में आने के बाद बुटी बोलते हैं चलो बाबा से भी मिल लेते हैं। बुटी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोटीज ऑफ बाबा, राइट? तो इनके मन में क्या चल रहा है कि मैं ठहरा शुद्ध ब्राह्मण, वो भी अग्निहोत्र ब्राह्मण ओके, बाबा ठहरे मुसलमान, मस्जिद में बैठे हैं, फकीर हैं, मैं उनके पास क्यों जाऊं? दैट इज वन थॉट। सेकंड, मैं मेरे गुरु को मानता हूं, गुरु गोलब करके उनको मैं मानता हूं, उनके सामने नतमस्तक हूं, किसी और के गुरु के बारे में क्यों सोचूं, कहां क्यों जाऊं? दैट इज द सेकंड थॉट ही हैज। बट बुटी ने बोला है, बुटी इज अ रिच फ्रेंड, उनके साथ इनका कुछ काम है, अभी ना भी नहीं बोल सकते हैं, राइट? तो जाते हैं, गोज टू मस्जिद और गुरु के पास जाते हैं। तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उनको पता है, कोई और गुरु मानता हो मगर गुरु के पास अगर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये भी उनको पता है। तो वो चले जाते हैं, कुछ फूल फल वगैरह लेके जाते हैं, तो लॉट ऑफ फ्रूट्स। जाके ही डजंट एंटर द मस्जिद, बाहर ही उनके जो आंगन है वहीं पे अर्पण करते हैं, नमस्कार करते हैं। बाबा भी उनको देख के खुश हो जाते हैं, बिकॉज किसी और के गुरु के भक्त हैं, ही इज नॉट अनहैप्पी अबाउट इट, वेरी हैप्पी, ही ब्लेसेस इट। मैंगोज हैं, बनानाज हैं ओके, लॉट ऑफ फ्रूट्स हैं। सो बाबा बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करो, कुछ बाबा के हाथ में भी देते हैं। इट इज सेड दैट बाबा, द वे ही स्क्वीज्ड दैट मैंगो आउट ऑफ दैट स्किन वाज, इट सीम्स वेरी यूनिक। वैसे इस तरह से उन्होंने स्क्वीज किया और ऊपर से होल किया कि सारा का सारा पल्प बाहर आ गया, सिर्फ सीड और स्किन एक तरफ रह गया एंड पूरा का पूरा पल्प ही गॉट आउट ओके। योग शक्ति है, राइट? तपस का शक्ति है। एंड ही ऑल्सो बनाना का सब छिलका सब निकाल के वो क्या करते हैं ना, छिलका को अपने पास रख के फ्रूट को एक प्लेट में डाल के उनका हाथ लग गया, वो प्रसाद हो गया, सबको बांट दो बोलते हैं। अच्छा, ये ना सूक्ष्म है ओके। छिलके को अपने पास रखना और फल को हमें देना इज बेसिकली अ सूक्ष्म, इट्स अ मैसेज। वो क्या है कि सारा जो दुनिया में बुरा चीज है वो मुझे दे दो, मेरे से जो भी अच्छा है तुम ले लो। That is what gurus do that, you know, and they do it in every instance. ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के पास ना एक बंदा आता है, वो 2 फल लेके आता है, 2 मैंगोस। उसमें एक ना थोड़ा सड़ गया है, मे बी इज डन अ लॉन्ग ट्रैवल एंड कम, बाय वी इट इज गुड, बट बाय द टाइम वी रीच समटाइम्स वो थोड़ा सड़ जाता है। तो ज्ञानानंद स्वामीगढ़ लेते हैं, 2 ऐसे फल को देखते हैं, एक में थोड़ा इट इज सड़ा हुआ है, तो स्वामीगढ़ बोलते हैं ये ना मेरे पास रहने दो, ये अच्छा वाला है, प्रसाद समझ के ले लो। इज व्हाट इज दिस, ही यूज्ड टू ऑलवेज से कि बुरा चीज मेरे पास रहने दो, अच्छी चीज तुम्हें मिलने दो। एक बार ना
स्वामीगढ़ को आके पूछते हैं कि आप लोग को मिलने के लिए कितने बुरे लोग भी आते हैं स्वामीगढ़, ऐसे क्यों? डिवोटीज अलग अलग प्रकार के होते हैं, इतने बुरे लोग क्यों आते हैं आपको मिलने? वो सब ऐसे क्यों होते हैं? जेलसी होते हैं, ईर्ष्या होते हैं, किसी और के प्रति गुस्सा करने वाले होते हैं। तो स्वामीगढ़ हंसते हंसते बोलते हैं हम लोग ना धोबी की तरह हैं। ओके, धोबी को सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? वो आता है ना, वो रिम या सर्फ में आता है ना, दाग अच्छे हैं, राइट? तो ऐसा हमें धोबी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सॉइल्ड क्लोथ्स, जो दाग लगा हुआ क्लोथ्स उनको अच्छे लगते हैं। क्यों? उनका वो धो के उनको साफ करके देना, ये उनका काम है, राइट? तो हम भी धोबी की तरह ही है, बुरे लोगों को आने दो, हम उनको साफ करके सोसाइटी में भेजेंगे। ज्ञानानंद स्वामीगढ़ सेज। तो दैट इज हाउ इट इज, राइट? वो चिल्का को अपने पास रख लेंगे, फल को हमें दे देंगे। ऐसे कितने तो हमने स्टोरी सुने हैं, राइट? गिरीश चंद्र घोष करके अट्टर सिनर इन रामकृष्ण परमहंस चरित्र, वुमनाइजर, अल्कोहल, स्मोकिंग, जो बोलेंगे उतना गलत चीज उनके पास था। ऐसे एक पर्सन को चुन के उठा के 16 सन्यासी, जिनको प्योर सन्यासी, विवेकानंदा एंड एवरीबॉडी, उनके साथ बिठा के गिरीश घोष को भी उन्होंने सन्यास ऑर्डर में इंडक्ट किया। वो रो देते हैं, वो बोलते हैं, जब वो कवर्ड दिस इन दी गुरुदेव चरित्र, कोई आके देता है, भगवा का कपड़ा देते हैं काशी में जाके दान करने के लिए, वो बोलते हैं नहीं, उसका काम यहाँ पे है, यहाँ पे 16 लोगों को दे दो। तो 15 लोगों को देने के बाद वो बोलते हैं एक रखो रिजर्व, एक इसका काम अलग से आएगा। दैट वन गुरुदेव एंश्योर्स दैट ही टेल्स नरेंद्र विवेकानंदा, ही सेज मेरे समाधि होने के बाद ये गिरीश को दे दो। इज व्हाट ही सेड। आफ्टर इस समाधि ना, इन लोग सब लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, 20-21 साल के बच्चे हैं सब। गिरीश घोष भी बैठा है उधर। वो बोलते हैं, नरेंद्र बोलते हैं ये आपके लिए रखा था, गुरुदेव ने दिया। रो देते हैं, बोलते हैं एक मेरे जैसे पापी इंसान को भी उठा के तुम लोग के साथ बिठा दिया, क्या करना है गुरु का। सो गुरु ना, दैट इज व्हाट दे विल डू। वो कितने भी पापी होंगे ना, उनको भी दे विल टेक एंड दे विल वॉश देम ऑफ देयर सिंस। स्वामीगढ़ ना, एक बार ज्ञानानंद स्वामीगढ़ आश्रम से बाहर चलते जा रहे थे। बैम्बू रहता है ना, बैम्बू इज अ लॉन्ग वन, राइट? तो somebody what they have done is they have cut the end, so ऐसा एक स्मॉल पार्ट एट द एंड ना, ऐसा रास्ते पे पड़ा है बड़ा बैम्बू का, उसने उन्होंने जो भी उपयोग किया होगा। तो ऐसा एक छोटा सा पार्ट है, इफ यू सी बैम्बू ना, उसको एंड में देयर इज एन एंडिंग टू इट। उल्टा तरफ से देखेंगे ना, इट विल बी लाइक अ स्मॉल कप। ओके, दैट इज हाउ इट जनरली इज। तो इतना सा भाग है, ओके, इट्स ओनली दिस मच। ओके, वो उसे उसको उठाते हैं और वो बोलते हैं ये क्या है? वो तो कोई साइड में सम असिस्टेंट इज देयर, ही सेइंग ये बैम्बू का किसी ने वेस्ट फेंक दिया है। तो स्वामीगढ़ बोलते हैं इसका भी हम उपयोग कर लें? तो बोलते ठीक है, इसका क्या उपयोग हो सकता है? इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट, किसी ने फेंक के गया है। तो स्वामीगढ़ बाजू में जाते हैं, वहां से मिट्टी उठाते हैं, उसमें इसे भरते हैं और वो बोलते हैं इसमें आज से अगरबत्ती जलाया जाए। यूजलेस प्रोडक्ट का भी यूजफुल बना के महकने के लिए रख देते हैं। इट इज अ सूक्ष्म दैट यूजलेस सोल्स लाइक अस स्वामीगढ़ विल पिक अप, और हमने भी महक लाके बाहर खड़ा करेंगे महकने के लिए, ताकि दूसरों पे भी महक बरसा सके। इस तरह से उन लोग हम पे अनुग्रह करते हैं, अनायास कर जाते हैं, राइट? व्हाई आई वांटेड टू टेल दिस इज बिकॉज वो चिल्का रख लेते हैं अपने पास। वो चिल्का रखने का क्या सूक्ष्म है, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू काइंड ऑफ एलैबोरेट। तो ये प्रसाद वगैरह उन्होंने बांट दिया है। तो ये शास्त्री ना बैठे हैं, ही इज ऑल्सो अ पामिस्ट, मतलब पत्रिका वगैरह देखते थे, एस्ट्रोलॉजी देखते थे, हाथ की रेखा पढ़ के बता सकते थे। ऐसे एक इंसान थे, वेरी टैलेंटेड, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ऑर्थोडॉक्स, शास्त्रों के ज्ञात, ऐसे बहुत दिग्गज ऐसे एक ब्राह्मण थे। तो उनके मन में ख्याल आता है कि बाबा के हाथ के रेखाएं पढ़नी चाहिए। तो बाबा से वो पूछ भी लेते हैं, बाबा मैं आपके हाथों का रेखा पढ़ना चाहता हूं, आपका फ्यूचर बताना चाहता हूं। हम लोग ना, वी आर ऑल रियल जोकर्स, ओके? हम लोग, आई शुडंट से दैट, बट सीरियसली हम लोग कहाँ बैठे हैं, किसके सन्निधि में बैठे हैं, इसका एहसास भी नहीं होता है हम लोगों को। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट शास्त्री जी। शायद हम भी बिफोर वी न्यू अबाउट बाबा, आज बाबा के बारे में इतना कहानी हमको पता है, इसीलिए हमको पता है बाबा क्या है, राइट? अगर हम भी शायद पहली बार मिलते तो हम भी यही सब करते हैं, राइट? वी वुड हैव आल्सो डाउटेड हिम।
बाबा ना हंसते टाल देते हैं, 4 बनाना उनको दे देते हैं। ये इसमें ना सेंट्स के साथ वी शुड नॉट प्ले। ये फिजिकल रूल्स के साथ बंधे हुए नहीं है, राइट? देयर ऑल यार बियॉन्ड ह्यूमंस। वो बॉडी इज लाइक डिफरेंट लेवल। उनके हाथ में रेखाएं है नहीं है पता भी नहीं है। ज्ञानानंद स्वामीगढ़ अयोनि जन्म था, उनको ना नेवल बटन ही नहीं था। पीपल हु हैव सीन हिम ओके विदाउट द अंगवस्त्रम, दे आर नोटेड कि उनको ही इज नॉट बॉर्न टू अ ह्यूमन ना। वो उनको जाके हम अपने रूल्स में मैं तुम्हारा हाथ देखता हूँ और तुम्हारे रेखाएं फ्यूचर ये हमारा फ्यूचर बदलने के लिए आए हैं। हम उनका भी फ्यूचर क्या देखेंगे? बाबा टाल देते हैं, ओके, जस्ट टाल के उनको बनाना लेके भेज देते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, ओके। एंड भगवान रमण महर्षि वगैरह ना वो अद्वैत के अवतार थे, ओके। मैं हमेशा बोलता हूँ लाखों सालों में ऐसा एक अवतार आता है। अद्वैत क्या है, व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, वो अगर हमें ह्यूमन रूप में देखना है ना तो वो भगवान रमण महर्षि थे। द डिटैचमेंट वाज कंप्लीट, इट वाज अ थॉटलेस माइंड, नॉट अ सिंगल थॉट विल बी रनिंग इन देयर माइंड्स। एक माइंड रीडर आता है। रमण महर्षि का क्या था ना, रमण महर्षि विल नॉट आंसर ऑल क्वेश्चंस। टॉक्स विद रमण महर्षि वगैरह बुक्स है, हाईएस्ट फिलोसफी के बारे में बात करेंगे, बट बहुत कम बात करेंगे, ओके। सवाल पूछा उतने का ही जवाब देंगे, कभी कभी सवाल का जवाब भी नहीं देंगे, ही विल नॉट आंसर, ही जस्ट कीप क्वाइट, ओके। कभी कभी नैनों से दीक्षा देख के वो आंसर कर देंगे। दैट पर्सन जो क्वेश्चन था वो विदाउट क्वेश्चन इट विल गेट आंसर्ड ऑटोमेटिकली। तो ऐसे अलग लेवल पे वो ही यूज्ड टू ऑपरेट रमण महर्षि। तो एक माइंड रीडर आता है, माइंड रीडर आके बोलता है कि मैंने इनके बारे में बहुत सुना है कि ये साइलेंटली दीक्षा कर देते हैं और यू नो एंड ही आंसर्स वेरी क्रिप्टिकली। I will read his mind and I will find out what is there in his mind. I will find out the thoughts. ऐसे करके he comes. भगवान रमण महर्षि का एक रूम था, वो अभी भी है, वो it is used as a meditation room. One of the best rooms in the world, one of the best geographical places in the world. तिरुवन्नामलाई अगर जाना हुआ तो ऑफ कोर्स रमणाश्रम तो जाना ही है। बड़ा समाधि मंदिर बांधा है जहाँ पे उनका समाधि, उनका मूर्ति है। उसके बगल में ही ना देयर इज अ वेरी स्मॉल रूम जहाँ भगवान ऑल हिज लाइफ लिव्ड, ओके। वहाँ पे उनका जिस कॉट पे वो सोते थे वो कॉट रखा है, तो बड़ा पोर्ट्रेट है वहाँ पे। वो कॉट पे ऐसा लेटा हुआ उनका एक फोटो है, वैसे के वैसे उन्होंने वहाँ पे रखा है। नॉट अ सिंगल वर्ड इज स्पोकन देयर ना। वहाँ पे चटाई रखा होता है, यू हैव टू एंटर द प्लेस, कंप्लीट साइलेंस, यू हैव टू एंटर। जिनको ध्यान रख सकते हैं रखते हैं, कोई सिर्फ वहाँ पे उनको देखने आते हैं, देखते हैं 5-10 मिनट, उससे ज़्यादा हम बैठ नहीं पाएंगे। कुछ लोग तो घंटों बैठते हैं। मन इतना जल्दी शांत हो जाएगा ना उस जगह पे, कितना भी विचलित हो, कितना भी दुख हो, एक क्षण भर में उनका सानिध्य है, वो अभी भी दिखा सकते हैं, वो अभी भी वो अनुभव सकते हैं वहाँ पे। अमेजिंग प्लेस। तो वहाँ पे आता है, दैट पर्सन कम्स, ही सिट्स, 2-3-4 मिनट होता है। रमण महर्षि ना इज टू गेज इन नथिंगनेस। वो ऐसे कहीं देख रहे हैं, वो कहाँ देख रहे हैं, किस पे अनुग्रह उस वक्त कर रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। एक सडनली स्प्लिट मोमेंट ना, ही जस्ट लुक्स एट हिम, ये हड़बड़ा जाता है, ही इज शॉक्ड, ही गेट्स अप एंड रन्स आउट। बोलते हैं व्हाट इज दिस। बोलते क्या हुआ, क्या आप तो कुछ माइंड रीड करने के लिए गए थे, हुआ क्या आपको? बोलते हाउ इज इट पॉसिबल, इट इज अ थॉटलेस माइंड, दैट वो माइंड में एक थॉट भी नहीं है, इज व्हाट ही कम्स एंड सेज। रमण महर्षि खुद तो बताएंगे नहीं, राइट? लीला इस तरह से कर गए कि किसी और से मकरवा लिया, जस्ट टू टेल अस दैट देयर इज एक्चुअली नो थॉट इन हिज माइंड। वो थॉटलेस माइंड रहता है। ये बंदा उनका हाथ देखना चाहता है, हमारे कर्म को बदलने का जो क्षमता भगवान रखता है, उनका भविष्य बताने निकले थे। तो बाबा टाल देते हैं, हंसते हुए टालते हैं, बिकॉज ही अंडरस्टैंड दैट ही इज कमिंग इनोसेंटली एट इट। थोड़ी देर के बाद थोड़ा बात वगैरह करते हैं। वो बोलते हैं मुझे अब मेरे अग्निहोत्र का समय हो गया है तो मुझे जाना है। तो ही गोज टू वाड़ा, वो नहा के उनका अग्निहोत्र का रूटीन। बाबा भी लेंडी बाग चले जाते हैं, लेंडी बाग जाके पानी वगैरह डालने के लिए ही यूज्ड टू गो देयर रेगुलरली। जाते जाते बाबा ना एक असिस्टेंट को बोलते हैं थोड़ा गेरू, तमिल में इट्स कॉल्ड शेम्मन, रंगोली डालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट? गेरू इट्स बेसिकली अ फॉर्म ऑफ मड। तो थोड़ा वो लेके चलो, आज काफनी को भगवा रंगेंगे, ऐसे करके ना ही टेल्स। एवरीबडी सरप्राइज, ये तो सफेद काफनी पहनते हैं, आज भगवा रंग करने की क्या जरूरत आन पड़ी? बट बाबा ने बोल दिया तो बोल दिया, उसके बाद देयर आर नो क्वेश्चंस ऑन इट, राइट?
तो वो चलते हैं, द असिस्टेंट टेक्स सम गेरू एंड वहाँ पे जाके वो काफनी को भगवारा भगवारे कर रहे हैं। थोड़ा देर के बाद बाबा वापस आते हैं, आरती का समय हो जाता है, मध्याह्न आरती का समय हो जाता है। वहां पे शास्त्री जी उनका पूजा खत्म करके बैठे हैं। जोग, बाबू साहब जोग जो है वो आते हैं और शास्त्री को बोलते हैं चलो अभी मध्याह्न आरती का समय होता है यहाँ पे, आप भी आके दर्शन लीजिए, बहुत स्पेशल होता है, नैवेद्य होता है बाबा का और आरतियां होते हैं, आप भी दर्शन ले सकते हैं। तो ये बोलते हैं नहीं नहीं आप हो आइए, मैं अभी मेरा पूजा सब खत्म करता हूँ, किया है, मैं बाद में शाम को दर्शन ले लूंगा करके ये रूम में बैठे हैं। इन लोग सब लोग पहुंचते हैं, बुटी भी पहुंचते हैं, जोग भी पहुंचते हैं। सब लोग पहुंचने के बाद वहां पे आरती चालू होने के पहले बाबा बोलते हैं वो नया नासिक का भाटुड़िया किधर है। भाटुड़िया इन मराठी मीन्स भट, भट मतलब ब्राह्मण को ना भाटुड़िया बोलेंगे। बाबा had a very different way of had a very different Marathi in which he used to converse, right? वो नासिक का नया भाटुड़िया किधर है, मेरे को दक्षिणा चाहिए उससे, लेके आओ उससे, is what he says। तो बुद्धि वहां पे खड़े हैं तो बोलते हैं मैं जाके लेके आता हूँ, मेरे ही दोस्त है, मैं जाके लेके आता हूँ। तो जाके बोलते हैं शास्त्री जी आपको बाबा ने बुलाया है, दक्षिणा मांग रहे हैं। तो इनके मन में ख्याल ये फकीर कौन है, यहाँ पे बूटी लेके आया इसलिए मैं आया हूँ, इनको मैं दक्षिणा क्यों दूं? Why should I come and give दक्षिणा to this person? मैं आ रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ दूर से, ठीक है, but I don't even consider him to be my guru. Why should I come and give? See, this is a mistake that all of us do, right? हम पूजा करते हैं, हम हवन करते हैं, हम दान धर्म करते हैं, हमको शास्त्रों का ज्ञात पता है, we know everything, but फिर भी अहंकार होता है, राइट? मैं कर रहा हूं, मैं इतना बड़ा पूजा सब कर रहा हूं। ये पूजा हवन होम शास्त्रों का ज्ञात ये सब का ऑब्जेक्टिव क्या है? अहंकार दूर जाना चाहिए, वो छोड़ के उसका ऑपोजिट हो जाता है, राइट? द होल पर्पस ऑफ डूइंग पूजा होम हवन ऑल ऑफ दिस नोइंग द शास्त्रास इज व्हाट? इज टू गेट वैराग्य, इज व्हाट? इज टू फाइंड अ गुरु। उनके चरणों में गिर जाना, उनके चरणों पे अपना ध्यान फिक्स करके अपने अहंकार को त्यागना, यही पर्पस है लाइफ का, राइट? यही पर्पस है पूजा का, यही पर्पस है होम का। वो छोड़ के उल्टा ज्यादा अहंकार कि मैं होम करता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं ऑर्थोडॉक्स हूं, मैं अग्निहोत्र हूं, राइट? दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। Adi Shankara in his Guru Rashtakam, right? He says a lot of things. He says तुम अच्छे होगे, तुम्हारे पास धन होगा, तुम्हारे पास you might have a lot of happiness. मनश्चेन लग्नम गुरोरंग्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। वो बोल रहे अगर मन गुरु के पैरों में नहीं है, उसमें फिक्स्ड नहीं है, तो क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा? I'll just narrate the few stanzas. And you would imagine कि even if you are वैराग्य अगर आ भी गया हो तो भी क्या? He comes on to say that. He says क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंदः सदा सेवितम यस्य पादार विंदम मनश्चेन लग्नम गुरोरंग्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम यशो में गतम दीक्षु दानव प्रतापा जगत वस्तु सर्वम करे यत् प्रसादात् मनश्चेन लग्नम गुरोरंग्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। लोगों में इतना दान धर्म करता हूं, यशो में गतम दीक्षु दानव प्रताप, मैं दान देने में इतना माहिर हूं, लोग बोलते हैं मैं दान धर्मी हूं। जगत वस्तु सर्वम करे यत् प्रसादात्, मैं पूरा जग जितना भी है मैं सब दान देने के लिए तैयार हूं। फिर भी अहंकार है, फिर भी अगर गुरु के पैरों पे तुम्हारा ध्यान नहीं है, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। There's a beautiful last stanza. It says न भोगे न योगे न वावाजी राजो न कांता मुखे नैव वित्तेषु चित्तम मनश्चेन लग्नम गुरोरंग्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। मेरे मन में वैराग्य भी है। I am not even attracted to the beautiful face of my wife. I am not anymore attached to the wealth that I have. I can give away everything. I might be even in that state of mind. फिर भी मनश्चेन लग्नम गुरोरंग्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। हम लोग पूजा दान धर्म सब हो सकता है, लेकिन अगर हमारे में अहंकार है, अगर हमारा मन गुरु के पैरों में नहीं है, तो क्या फायदा? एवरीथिंग एल्स इज अ वेस्ट, राइट? यू कैन बी व्हाटएवर इन लाइफ, बट इफ यू कांट डू दिस मच आल्सो, इट इज ऑल अ वेस्ट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो ये फिर भी आई मीन बिकॉज बुटी इज कॉलिंग, ही कम्स ओवर। ओके, वो बोलते बुटी बुला रहे हैं, बाबा ने बुलाया है तो चले जाते हैं, लेट्स सी क्या होता है। दक्षिणा देना है तो दे देंगे कुछ जितना मांगेंगे। तो आ जाते हैं, आके नमस्कार करते हैं, दूर से ही कर रहे हैं, नमस्कार करके खड़े हैं,
मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है, इस चोकिंग, आंखों से धारा बह रहा है, बदन में रोमांच हो रहा है. ही इज नो मोर सीइंग बाबा देयर. वो उनके जो स्वर्गवासी गुरु हैं, जो लेट गुरु गोलब स्वामी करके उनके एक गुरु थे, उनका दर्शन उन्होंने बाबा ने दे दिया. वो आंख पहुंच रहे हैं, बोले मेरे गुरु तो उनका स्वर्गवास होके काफी दिन हो गया, ये कैसे यहाँ पे आगे करके आंख पहुंच के देखते हैं, बाबा हंस के उनको ऐसे हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं. He just dashes to his feet. बोले माफ कर दो बाबा, मैं आपको पहचाना ही नहीं. राइट, आप कैसे परब्रह्म स्वरूप है, आप मेरे गुरु का मुझे दर्शन दे दिया, आप किस लेवल पे मैंने पहचाना नहीं, आपको क्या चाहिए दक्षिणा, मेरे पूरा लाइफ में आपको अर्पण कर रहा हूं करके he comes and falls at his feet. मैंने आप पे संशय कर दिया बाबा, माफ कर दो. नमस्कार होने के बाद बाबा बाकी वो जो असिस्टेंट के मन में था ना, ये आज गेरू रंग रंगने की क्यों सोच रहे करके, वो असिस्टेंट को देख के हंसते हैं. और तभी उनको पता चलता है कि गुरु गोलोक वॉज भगवा रंग पहनते थे बिकॉज ही वॉज सन्यासी. राइट, तो आज ये लीला करना था बाबा को बाह्य रूप में, हो तो यूं भी उनको दर्शन दे सकते थे, तो बाह्य रूप में उन्होंने उनको दिखाया. तो वो उनको देख के हंसते कि आज गेरू इसीलिए इसको रंगना था. इस तरह से उन्होंने उनको उनका गुरु का एक दर्शन दिलवाया. एक डॉक्टर, okay, he is a friend of one of the मामलतदार at शिरडी. That doctor, because he is a friend, वो मिलने आता है दोस्त को शिरडी में. तो दोस्त बोलते हैं शिरडी आए हो तो बाबा का दर्शन तो बनता ही है, तो बोलते बाबा को हम दर्शन करेंगे, चलो. तो वो बोलता है मैं ना ये सब मानता नहीं हूँ, मेरे सिर्फ प्रभु श्री राम है. राइट, मुझे इनको नमस्कार करो, उनके नमस्कार करो, ये सब मैं करूंगा नहीं, मैं सिर्फ मेरे प्रभु श्री राम को मानता हूं. आई डोंट बिलीव इन दिस गॉड मैन, आई ओनली बिलीव इन गॉड. स्टैंडर्ड डायलॉग, ये सब हम आजकल भी सुनते हैं. राइट, ये सदियों से चलता आ रहा है. राइट, सारे अवतार एक ही तत्व के अलग अलग रूप है. सी मुझे ये कहना आज बहुत आसान है, मैं ये बार बार कह रहा हूं, ये मुझे कहना आज बहुत आसान है क्योंकि बाबा की लीलाएं हमको पता है, ज्ञानानंद स्वामीगढ़ की लीलाएं पता है, महापेरिवा के पता है, मौली के पता है. आज अगर हमारे सामने उस कदर का एक कोई संत आके बैठ जाएंगे तो हम भी पहले विल डाउट, ये कौन है, इनको क्यों नमस्कार करना चाहिए. राइट, हमें तो क्षमता ही नहीं है ना संत को पहचानने का. वी जस्ट कांट डू दैट, वी नीड समबडी एल्स टू टेल अस दैट ही इज अ सेंट. राइट, या कुछ चमत्कार करेंगे या हमारे लाइफ में कुछ चेंज होने के बाद ही हम बिलीव कर पाएंगे. राइट, बट वो इन दैट फॉर्म दे आर जस्ट डिफरेंट फॉर्म्स टू द सेम तत्व. राइट, एक माँ जब खाना पकाती है ना, स्वाद अनुसार करती है. राइट, I'll give you a classic example. दाल होता है ना, मराठी में वरण बोलते हैं. ओके, वो भी अलग अलग तरीके का बनता है. अभी हमारे घर में है 3-4 जन. ओके, लेकिन मुझे ना आई लाइक द सॉल्टेड वन. ओके, माय सन लाइक्स द स्वीट वन, इट्स कॉल्ड गोड़ा वरण. माय वाइफ प्रॉब्ली लाइक्स द अंबट वरण व्हिच इज द सावर वन. ओके, तो जब वरण जैसा दाल जैसा सिंपल चीज भी बनता है तो माँ क्या करती है, स्वाद अनुसार बनाती है. मुझे जिस तरह से चाहिए बनाएगी, मेरे बेटे को जिस तरह से चाहिए बनाएगी. एक दाल का अलग अलग स्वरूप हो सकता है, तो निर्गुण निराकार भगवान को अगर अवतार लेना हो तो क्या वो अलग अलग स्वरूप में नहीं आ सकता. जिस तरह से हम उनको देखना चाहते हैं, हमारे विश्वास के अनुसार वो अलग अलग रूप लेते हैं. कभी राम बन के आए, कभी कृष्ण बन के आए, दोनों मिलके खुद राम कृष्ण परमहंस बन के आए. राइट, उस जमाने में जो जरूरत था, उस टारगेट ऑडियंस को जो जरूरत था, उस तरह से महापेरिवा वेदों के लिए जी के गए, ऐसे एक संत बन के आए. कभी माउली बने तो कभी साईं बाबा बने. राम जिस तरह से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, वो खुद उस तरह से वो जी के गए. ही लिव्ड अ लाइफ दैट ही वांटेड अस टू लिव. राइट, अगर कृष्ण के अवतार में आए, ही लिव्ड अ वेरी रिस्की लाइफ. राइट, he spoke of a lot of things and we have to live our life as per what he spoke. We try to even for a moment try and live the way he lived, we all will be in jail. Okay, वो इस तरह का वो controversial लाइफ था कृष्णा का. राइट, मल्टीपल मैरिजेस, किलिंग मामा, ऐसे सब उनका हिस्ट्री शीटर है वो. राइट, वो जो बोल के गए उस पर ध्यान देना चाहिए. राइट, महापेरिवा वेदों को उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो बताने के लिए उनका एक जन्म था. पूरा का पूरा लाइफ इज स्पेंट ऑन दैट. Mauli spent all his life in troubles, right? As a small child, they didn't have food to eat. The society troubled them so much they didn't have food. कितने तो रात शायद वो बच्चे सिर्फ पानी पी के सोए होंगे, right? इस तरह से उन्होंने जिया, इस तरह से सोसाइटी ने उनको परेशान किया, लेकिन वो वापस देते वक्त क्या दे गए? ज्ञानेश्वरी देते गए.
ज्ञानेश्वरी लिखने के बाद जब गुरु ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए मांगो ज्ञानदेवा, तो हमारे लिए पसायदान मांग के गए, हमारे लिए वारकरी संप्रदाय करके गए, राइट। वो ऐसे एक भक्कम संप्रदाय जो 750 साल जी रहे, दैट इज लिविंग ट्रेडिशन, ऐसे हमें वरदान में देखे गए। साईं बाबा भी अलग रूप थे, राइट। ही सिंपली सेड वन थिंग, तुमको पूजा नहीं आता है, मंत्र नहीं आता है, श्लोक याद नहीं रहता है, तुम बुद्धू हो, तुमको कुछ नहीं आता है, डरो मत, तुम सिर्फ मेरे प्यार से देखो, मैं तुम्हारे पास देखूंगा, राइट। अलग अलग स्वरूप, क्यों? बिकॉज अलग अलग टारगेट ऑडियंस है, राइट। जैसे खाना स्वाद अनुसार बनता है, विश्वास के अनुसार अवतार होते हैं, वो सेम प्रभु राम साईं बाबा करके आए हैं, ये हम पहचान नहीं पाते हैं। दैट इज वाई दिस पर्सन ऑल्सो इसे, मैं तो सिर्फ प्रभु राम को नमस्कार करूंगा, मेरे मन में तो सिर्फ वही है, मैं गॉड मैन वगैरह नहीं विश्वास करूंगा, मुझे ना वहां पे आके नमस्कार करो मत बोलो, इट्स व्हाट ही इज टेलिंग हिम। एक तो मस्जिद है, मुसलमान है, वो तो दैट वाज कॉमन इन केस ऑफ साईं बाबा, राइट, दैट बैरियर वाज देयर फॉर ऑल। तो वो आते हैं, बाहर मस्जिद के बाहर खड़े हैं, सब लोग दर्शन ले रहे हैं, दिस पर्सन इज हैविंग टीयर्स इन हिज आईज, दोस्त देख रहा है इसको क्या हो गया, आंखों से आंसू आ रहा है, चुपचाप चल के जा रहा है, जाके सीधा नमस्कार करके वापस आ जाता है। दर्शन अगर होने के बाद ये दोस्त पूछते हैं क्या हुआ, इतना तो बड़ाई कर रहे थे कि मैं नमस्कार नहीं करूंगा, मुझे मस्जिद के अंदर मत बुलाओ, मैं नहीं आने वाला हूं। बोलते हैं नहीं नहीं, ये बाबा कहाँ है, ये मुसलमान भी नहीं है, बाबा भी नहीं है, तो मेरे खुद प्रभु श्री राम है। बाबा ने उनको प्रभु श्री राम का दर्शन दिला दिया, राइट। दिस इज राम हिमसेल्फ सिटिंग देयर, इट इज नॉट योर बाबा और योर मुसलमान फकीर हु इज सिटिंग देयर, इट इज माय प्रभु श्री राम। There is a similar experience that happens in योगी राम सूरत कुमार, बहुत बड़े संत, अपने समय में होके गए हैं, राइट। तिरुवन्नामले में रहते थे, वो भी राम नाम का जप करते थे, ओके। तो देयर इज दिस फ्रेंड हु इज अ डिवोटी, वो उसके दोस्त को बोलते हैं चलो हम तिरुवन्नामले जाके आते हैं, योगी राम सूरत कुमार करके एक बहुत बड़े संत है उधर, सदैव फॉर्म में है, दर्शन लेना चाहिए, जाके मिलके आते हैं, नमस्कार करके आते हैं। तो वो बोलता है यार मैं ना ये सब करूंगा नहीं, मुझे आके वहां पे जबरदस्ती मत करो, नमस्कार करो, ये करो वो करो, तुम्हारे साथ आता हूँ, तिरुवन्नामले घूमेंगे, होटल में खाएंगे टाइप्स। तो फॉर हिम इट इज अ हॉलीडे, ओके, प्लेजर हॉलीडे। तो चलता है, ही कम्स, वो आता है, ये फ्रेंड, ये जो डिवोटी है ना, वो योगी को करके देख के नमस्कार करता है। नमस्कार करने के बाद योगी का ध्यान उसके फ्रेंड की ओर जाता है, एक स्प्लिट सेकेंड में ना योगी राम सूरत कुमार और फ्रेंड को नमस्कार कर देते हैं। दिस पर्सन इज सुपर शॉक, बोलते हैं योगी जी आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप क्यों उनको को नमस्कार कर रहे हैं। तो ही यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, वो काशीवासी थे मगर ही यूज्ड टू लिव इन साउथ इंडिया, हिंदी इंग्लिश में बात करते थे। तो बोलता माय फ्रेंड इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू डू नमस्कार बट इज वेरी सिंपल फॉर मी बिकॉज आई सी राम इन एवरीवन। मैं सब जगह में राम को देखता हूं, तुम्हारे अंदर के राम को नमस्कार करता हूं, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि इनका जो वार्तालाप हुआ है वो कहीं चेन्नई में हुआ है, राइट। ये नमस्कार करने नहीं वाला, ये कैसे इनको पता है। ये सडनली रियलाइजेस कि जो मन वहां पे जो मन में था वो योगी ने पहचान लिया था। तो ऐसे इस तरह से उन्होंने उनपे एक परमहंस सन्यासी ने नमस्कार कर दिया, मतलब क्या लेवल का अनुग्रह कर दिया। यू कैन जस्ट इमेजिन द ब्लेसिंग्स दैट ही हैज गिवन टू दैट पर्सन इंस्टेड ऑफ हिम सेइंग दैट आई विल नॉट डू नमस्कार। तो इस तरह से इन पे भी उन्होंने, इनका फ्रेंड पे भी उन्होंने साईं बाबा ने अनुग्रह किया। आई विल कम टू अ फ्यू स्टोरीज अराउंड हाउ वी क्योर्ड इलनेसेस। इसके पहले भी शायद एक दो बार हमने कवर किया था। बाला गणपत शिंपी करके एक डिवोटी था, उनको ना मैलिग्नेंट मलेरिया, अच्छा ये जब मैं पढ़ा तब मेरे को ध्यान में आया, आई डिडंट नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मैलिग्नेंट मलेरिया, अपेरेंटली अ वेरी सीवियर टाइप ऑफ एन इन्फेक्शन एंड अ वेरी डिफिकल्ट वन टू क्योर, ओके। तो उस जमाने में तो इट हैव बीन इवन मोर डिफिकल्ट टू क्योर। तो वो he had that kind of a malaria which was not getting cured। अलग अलग डॉक्टर्स के पास वैद हकीम हो गया, कुछ फायदा नहीं है। बाबा के यहाँ पे रोते रोते आते हैं, बाबा मदद कीजिए, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाबा प्यार से उसके पास देखते हैं, बोलते हैं मेरी एक मदद करोगे। ये खुद यहाँ याचक बन के मदद मांगने आया है, संतों की करुणा देखो, खुद मांग रहे हैं बाबा मेरी एक मदद करोगे। वो बोलते हैं बाबा आप बोलो वो मैं करूँगा, आपका वचन इज माय आज्ञा, आई हैव टू डू इट। सो बोलते हैं दही का चावल, यू नो कर्ड राइस मिक्स कर लो, लक्ष्मी टेम्पल के यहाँ पे जाओ,
उसके द्वार के सामने एक काला कुत्ता रहेगा, उसको जाके खिला दो। अरे ये सोच रहा है ये क्या हो गया, दही चावल तो घर पे कर देंगे, लक्ष्मी का टेम्पल भी चले जाएंगे, उसके सामने काला कुत्ता कहां से ढूंढेंगे, राइट? बट इंस्ट्रक्शन वाज वेरी स्पेसिफिक एंड दैट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हैज टू बी फॉलोड। अभी इनको टेंशन कि ये काला कुत्ता ढूंढते कितना रहूंगा मैं, काला कुत्ता कहां से लेके आऊंगा टू फीड हिम एंड देन आई विल गेट ओके। मतलब कितना दिन जाएगा मुझे पता नहीं है। इस सोच में घर आते हैं, घर आते ही उस दिन बाय चांस हिज वाइफ हैज मिक्स्ड दही चावल, ओके, सो ही सरप्राइज्ड कि तुमको कैसे पता चला? बोला नहीं, पुराना चावल था, दही था, मिक्स करके रखा है खाने के लिए। बोलते नहीं रुको, कुछ तो होने वाला है, मैं जाके ना ये चावल ये लेके मैं अपने मंदिर में जाता हूँ। तो उनके गांव में वहां पे मंदिर था, तो लक्ष्मी के मंदिर के सामने जाके खड़े रहते हैं, उनको सामने से काला कुत्ता दिखता है, आगे खिला देते हैं। इन फ्यू डेज ही बिकम्स ओके। द रीजन व्हाई आई वांटेड टू कवर दिस स्टोरी इज वेरी स्पेसिफिक, ओके। ये जो आंसर्स रहते हैं ना, ये जो निवारण करने का जो तरीका रहता है ना, ये बहुत स्पेसिफिक टू दैट डिवोटी है। ऐसे नहीं है कि हमको अभी किसी को भी मलेरिया हो गया तो दही चावल करो, लक्ष्मी के टेंपल के यहाँ जाओ और काला कुत्ता ढूंढो। दैट इज नॉट एन आंसर फॉर अस, ओके। दैट आंसर इज ओनली फॉर दैट डिवोटी। वो पिछले जन्म में कुछ तो हुआ रहेगा, वो कुत्ते के साथ, वो दैट सोल विच इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ दैट ब्लैक डॉग, मे बी उनके साथ कुछ तो हुआ रहेगा, खाना दिया नहीं रहेगा, यू नो, ही माइट हैव आस्क्ड फॉर दही चावल एंड ही माइट हैव नॉट गिवन, ओके, एंड इट वुड हैव हैपेंड इन फ्रंट ऑफ लक्ष्मी टेंपल इन दैट जन्म। पता नहीं why Baba says something, you cannot decipher all what he says, but this was an answer very specific to him. वो जाके वो करते हैं, उनका निवारण हो जाता है। ये कोई और करेगा तो होगा नहीं, ओके। द रीजन आई वांटेड टू टेल, हमको अगर कुछ बीमारी होता है, हमको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वी शुडंट गो टेलिंग समबडी कि नहीं बाबा ना किसी को बोला था दही चावल करो, कल कुत्ते को खिलाओ, लक्ष्मी के टेंपल के सामने ठीक हो जाएगा। इट विल नॉट वर्क. It will simply not work, okay? It will only work with his. So the answer is what? The answer is बाबा के प्रार्थना करो, वही राह दिखाएंगे. That is the अनुग्रह is बाबा, the blessing is बाबा. जो हमसे करवाते हैं वो सिर्फ काम है ऐसे ही, okay? For him to show कि there is some work to do. भीमाजी पाटिल करके there is a devotee, okay? Actually was not a devotee. वो पुणे में रहते थे, जुन्नर में रहते थे, पुणे डिस्ट्रिक्ट में. This is in 1909, okay? He was suffering with a very severe chronic lung disease, okay? लंग में उनका एक बहुत डिसीज एक था, हमेशा खांसते थे and it was very weakening and it was chronic, मतलब the cough was there continuously for many years. Eventually because of some infection वो it becomes TB, tuberculosis हो जाता है, और tuberculosis होने के बाद it also now becomes fatal, मतलब वो कुछ ही दिन रहेंगे, इस तरह का एक टाइम आ जाता है where he will not survive for too long. हर 5-10 मिनट में he used to cough and with every cough there he used to have blood coming out. इस लेवल तक उनका वो लंग डिसीज चला गया है. संकट बंद्रे वेंकट रमणा, when you are in problem you go to God, that is all. दवा दारू सब ठीक है, after a level I think we all come, भगवान के पास ही आके पहुंचते हैं यहाँ पर, right? तो वो चंदोरकर was his friend, तो चंदोरकर से मिलते हैं, बोलते मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से परेशान हूँ एंड आई एम नाउ इन माय लास्ट स्टेजेस, आई डोंट नो व्हाट टू डू. चंदोरकर एज यूजुअली सेज, बोलते हैं बॉस हम लोग के यहाँ पे जब भी प्रॉब्लम होता है हम एक ही के पास जाते हैं, वो है बाबा. तुमको अगर विश्वास हो तो मैं लेके जाता हूँ, अगर ठीक होना हो तो हो जाओगे, नहीं होना है तो एटलीस्ट मन शांति तो जरूर मिलेगा, राइट? वेल एनीवे टेक यू टू बाबा, इट इज अबाउट हिम. वो करुणा करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं ये उन पे निर्भर है, हम उनको बोल नहीं सकते हैं, हम सिर्फ याचना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, सच्चे मन से प्रार्थना कर सकते हैं. तो लेके आते हैं. वो लेके आने के बाद ऐसे वक्त पे जो ग्रस्त है, जो परेशान है, जो मरने वाला है कुछ दिन में, वो ये नहीं सोचेगा मैं मस्जिद में जा रहा हूँ, मुसलमान के पास जा रहा हूँ, राइट? डूबने वाले को तिनके का सहारा, राइट? ये सब बाकी वालों के लिए. वो आता है, वो सीधा पैर में गिर जाता है, बोलता है बाबा मदद करो देवा, मुझे बोला गया कि आप पापियों का भी पाप कर लेते हो, सभी पे आप करुणा कर लेते हो, बाबा आपको मुझ पे दया करना ही पड़ेगा. बाबा धीरे से ना उनको उठाते हैं, ओके, एंड ही सेज ये वाला पूर्व जन्म का पाप है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, ऐसे करके मुंह फेर के बैठ जाते हैं, ओके. तो ही बिकम्स इवन मोर डिजेक्टेड. बोलते हैं एक ही सहारा है लाइफ में,
वो सहारे ने भी मुंह मोड़ लिया तो कहाँ जाएंगे हम लोग? सी फॉर अस ही इज द ओनली रिफ्यूज, राइट? उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया तो हम कहाँ जाएंगे? अनाथ हो जाएंगे हम लोग। तो इस हेतु ना पैर पकड़ के रो देते हैं, बाबा अगर आप भी मेरे से अगर रूठ गए तो मैं कहाँ जाऊंगा बाबा, आप दया करो मुझ पर, प्लीज दया करो। बाबा टर्न्स, ही टचेस हिज हेड एंड ही सेज, यहाँ का फकीर ना दयालु है, ठीक हो जाओगे। He used to say this sometimes, okay? यहाँ का फकीर मतलब for him he used to refer to the God. For Muslims it could be Allah, for us it could be Ram. हमारे लिए फकीर वो खुद है, right? यहाँ का फकीर दयालु है, मस्जिद का फकीर दयालु है, ठीक हो जाओगे, is what he says. तो बहुत खुश हो जाता है। It seems what had happened is he used to vomit blood every 5-10 minutes. The moment he stepped into Dwarka Mai, his coughing stopped and blood का निकलना भी बंद हो गया था। वो 10 मिनट के अंदर वो सब बंद हो गया था। जस्ट दैट सन्निधि में आने से दैट इफेक्ट हो गया था। बाबा ने जब बोला फकीर दयालु है, ठीक हो जाओगे, उनका जो चेस्ट का कंजेशन था ना, वो जो हेवीनेस था, वो धीरे धीरे उनको ही कुड फील दैट इट इज गेटिंग रिलीव। वो कंजेशन भी थोड़ा कम हो रहा था। बाबा उनको बोलते हैं यहाँ पे कितने दिन रुकने वाले हो? तो बोलता है बाबा मैं तो आज जाने की सोच रहा हूँ। तो बोलता है नहीं, रुक के जाओ। तो बोलता है यहाँ पे रुकने के लिए मेरे लिए कोई जगह नहीं है बाबा। तो बोलते हैं यहाँ पे भीमाबाई करके उनका घर है, वहां पे जाके रुक जाओ। वो भीमाबाई का घर जो है ना, अपेरेंटली इट वाज अ वेरी स्मॉल प्लेस। वो खुद जो रहते थे वही मुश्किल से रहते थे, ऊपर से अतिथि आ गया तो कैसे, इट वाज एन इनकन्वीनियंट प्लेस। पर बाबा ने बोल दिया तो फाइनल है, राइट? मेरा वचन ही शासन है, सो यू कांट अपोज हिम। सो बाबा ने बोला भीमाबाई का रहना है, तो भीमाबाई को बोलते हैं कि इनको आपको रखना होगा। तो वहां पे जाके रह लेते हैं। उस रात को उनको सपने में ही गेट्स 2 ड्रीम्स, ओके? इन द फर्स्ट ड्रीम वो एक स्कूल बॉय की तरह खड़े हैं और सामने टीचर केन, हम लोग ने, आजकल के बच्चों ने मार नहीं खाया रहेगा, हम लोग ने तो बहुत मस्ती की, तो बहुत खाए हैं टीचर से। those days there used to be this cane, छड़ी होता था, सॉलिड लगता था, ओके? तो वो लेके ना दैट टीचर इज बीटिंग दैट, उनको मार रहे हैं, ऐसे उनको ड्रीम में है। एक पोएम रिसाइट नहीं किया इसीलिए जोर जोर से मार रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है, चिल्ला रहे हैं, ये सब ड्रीम में चालू है, चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। ये एक ड्रीम हुआ। थोड़ा देर के बाद ना ही हैड अनदर ड्रीम। वो लेटे हुए हैं, खास रहे हैं। वो चटनी बनाने के लिए ना, उस जमाने में देयर यूज्ड टू बी दिस स्टोन एंड देन देयर यूज्ड टू बी दिस रोलर, ओके? वैसे पीस पीस के चटनी बनता था, आजकल के जैसे नहीं मिक्सर में डाल दिया खत्म हो गया। तो पीस के यू हैव टू डू दैट चटनी। तो वो जो पीसने वाला जो राउंड स्टोन होता था ना, उनको सपने में ऐसा आ रहा है कि कोई उनके छाती पे बैठा है और छाती पे वो ऐसा रगड़ रहा है, बहुत दर्द हो रहा है एंड चिल्ला रहे हैं। ये सब सपने में हो रहा है, बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है। किसी तरह वो सपने से बाहर उठ के वो उठते हैं, बट ही स्टिल, व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग अ ड्रीम ना, वो ड्रीम में वो सच ही लगता है ना अपने को। He had experienced an immense pain. दोनों pain was very immense. The moment he gets up, he finds that his infection, वो जो एक congestion हुआ करता था, खांसने का एक प्रवृत्ति था, वो सब चला जाता है। His cough had gone and that congestion had also started relieving and he slowly gets cured out of it. तो इसमें बाबा ने किया क्या? Give me just 2 minutes. I know in the last 10 minutes, but allow me to narrate this story completely. ये एक ना लीला करने का एक अलग तरीका है। सो इफ यू हैव सीन हाउ वी डिड फॉर खापरडे's सन, व्हेन खापरडे कम्स एंड टेल्स मेरे बेटे को शायद प्लेग हो गया है, बाबा ने अपना काफनी उठा के दिया, माई ये तुम्हारा नहीं है मेरा है। ही टुक ओवर द डिसीज ऑन हिमसेल्फ, राइट? व्हेन इट केम टू सेविंग अ चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग इनटू द फायर, बाबा अपने हाथ उन्होंने आग में डाल दिया था, वो आग का जलन अपने हाथों में ले लिया, लेकिन बच्चे को बचा लिया, राइट? यहां पे उन्होंने क्या किया इन दिस लीला, इफ यू आर टू केयरफुली एनालाइज, एक्चुअली हम लोग ना एनालाइज करना नहीं चाहिए, मगर वो हम लोग का ना आदत रहता है ना टू एनालाइज एवरीथिंग, बट हम लोग एनालिसिस में मिलता क्या, वी अंडरस्टैंड हाउ गुरुज डू देयर लीला। इसमें अगर देखोगे ना, ही मेड द जीवात्मा टू सफर, ही डिडंट टेक इट ऑन हिमसेल्फ। उन्होंने उनसे ही वो पूरा का पूरा दर्द उनसे ही एक्सपीरियंस करवाया, लेकिन एक इस तरह से करवाया कि वो इट लुक्ड लाइक अ पेन बट इट इज नॉट अ पेन। पूरा का पूरा इट वेंट इनटू अ ड्रीम, राइट?
वो ड्रीम में ही एक्सपीरियंस्ड इमेंस पेन। शायद जो आगे टीबी मरने तक जो उनको पेन होता था, कंजेशन होता था, वो सारा का सारा क्रंच करके 2 घंटे में अगर वो पेन को एक्सपीरियंस करना हो, इस तरह से वो पेन को क्रंच कर दिया, पूरा का पूरा कर्मा को बर्न कर दिया, राइट। बट इन अ ड्रीम व्हेन ही गॉट अप ही वाज फ्रेश, राइट। इस तरह से वो जीवात्मा को एक्सपीरियंस देके उनका कर्मा बर्न किया, विच इज अ लिटिल डिफरेंट वे ऑफ डूइंग द। अनुग्रह ही किया, अपने में लेने के बजाय ही मेड दैट पर्सन सफर। क्यों? क्योंकि उनका वो प्रारब्ध था, राइट। उन्होंने बोला ये पिछले जन्म का पाप है। होता क्या है, पाप अगर लेते हैं तो अगले जन्म में दुगना बन के आएगा। डजंट मेक सेंस, अभी सफर कर लो। सो सफर इस तरह से करवाया कि एक सपने में करके उन्होंने अनायास उनको ही एंश्योर्ड दैट ही गॉट रिकवर्ड फ्रॉम अ फेटल टीबी। Allow me just 2 minutes because इसमें ना there is another story that I would like to narrate, and this is a very beautiful story of His Holiness चंद्रशेखर भारती। श्रृंगेरी के गुरु हैं। जब महापेरिवा कांची में थे, उसी वक्त श्रृंगेरी में चंद्रशेखर भारती करके एक बहुत बड़े दिग्गज संत होके गए हैं। तपोबल से इतना कुछ साध्य कर गए, उनके बारे में एक अलग सेशन अपने को रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ हिज चरित्र। There are people who have had the benefit of taking darshan of Chandrasekhar Bharati and Mahaperiva. Mahaperiva was called as Chandrasekharendra Saraswati. तो दोनों चंद्रशेखर उस टाइम पे ना श्रृंगेरी और कांची में थे। बहुत दिग्गज ऐसे एक संत होके गए हैं श्रृंगेरी में। तो उनके यहाँ पे ना, when he was the पीठाधिपति, उनके यहाँ पे there is a parent, there is a family which comes. एक माँ, पिता और एक बच्चा, ओके, 7, 8, 10 साल का बच्चा होगा। That boy was suffering from epileptic fits, okay, severe epileptic fits. बहुत कुछ चिकित्सा करने की कोशिश की, they tried doing whatever treatment they could, but he was not getting cured. Temporary relief मिलता था, वापस 2 महीने के बाद it used to relapse, and it had started affecting his mental state, it had started affecting his daily routine life. सब उथल पुथल हो गया था, and दुख था जनरली कि अपने बच्चे को ऐसे क्यों हो गया। तो इस अनुग्रह के लिए उनको किसी ने बोला कि परिवा के पास जाओ। वी हैव टोल्ड दिस, राइट, कि हम लोग जनरली पीठाधिपति को परिवा बुलाते हैं। परिवा मीन्स बड़े, ओके, दैट इज ऑल इट मीन्स। तो परिवा के पे आते हैं, नमस्कार करते हैं। परिवा को नमस्कार करने के बाद, पूजा वगैरह होने के बाद रुके हुए दर्शन के लिए उनका समय आता है, नमस्कार करते हैं। वो रोते हैं, रोते हुए बोलते हैं, परिवा आपका अनुग्रह की जरूरत है, हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आपके अलावा अभी हमारे हाथ में कोई नहीं है। देयर इज नोबडी who's going to help us. We are come to your शरण में आ गए हम। परिवा वो बच्चे को देखते हैं, बोलते हैं ये तो पूर्व जन्म का कर्मा है, इसमें छेड़छाड़ ना करें तो बेहतर है, इज व्हाट परिवा सेज। वो बोलते हैं अगर हम इसे कुछ करना भी चाहें तो अगले जन्म में दुगना बन के आएगा। ही विल सफर इवन मोर इन द नेक्स्ट जन्म। इस जन्म में हो रहा है, होने दो, ऐसे बोल देते हैं। माँ पिताजी को कैसे रहेगा ना, बोलने के लिए बोल देंगे गुरु तो कि होने दो। माँ पिताजी को रो देते हैं, बोलते हैं आपने ही हमें सहारा छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे, मदद करो देवा, परिवा हम कुछ नहीं कर सकते आपके बिना। परिवा टेक्स करुणा, ही सेज रुकने वाले हैं आप? बोलते हैं नहीं, हम तो आज ही जाने की सोच रहे हैं। नहीं आप रुकिए, ही सेज। तो दे वहाँ पे लॉज वगैरह है श्रृंगेरी में, सो दे स्टे पुट देयर इन द नाइट। दैट नाइट दैट सन, he gets epileptic fits back to back, every minute, every 5 minutes, severe epileptic fits, pura night. That boy is breathless, perspiring, continuous back to back epileptic fits आ रहे हैं। माँ पिता क्या करना they are not able to handle it, they are really suffering. The whole 8 hours of night has been thorough hell for that mother, father and that son. किसी तरह से वो शांत करके 4-5 बजे वो सोता है बच्चा। सुबह होते ही दौड़े चले आ जाते हैं माँ पिता। बच्चा तो सोया है, माँ पिता दौड़े चले आते हैं दर्शन लेने के लिए। परिवा का दर्शन चाहिए हमें, लास्ट नाइट वॉज हॉरिबल। परिवा ने बोल दिया ठीक होगा, लेकिन ये हुआ नहीं है। ऐसे नहीं कि हम लोग डाउट कर रहे हैं, नो, इट्स नॉट दैट दे आर डाउटिंग, मगर परिवा ने बोल दिया ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर एक नाइट फुल ऑफ ऐसे होता है तो मन में रहता है ना कि मदद की और जरूरत है, राइट। इस हेतु भक्ति और श्रद्धा के साथ आते हैं, नमस्कार करते हैं, बोलते हैं परिवार लास्ट नाइट वाज नाइटमेयर, इतना बैक टू बैक फिट्स कभी नहीं आया। परिवार स्माइल्स एंड रेजेस हैंड, सेज सारा पाप धो लिए, अभी ठीक हो गया।
पूरा जन्म का एपिलेप्टिक फिट जितना भी होगा ना 8 घंटे में ही क्रंच्ड इट. He didn't take it on himself. It is a path that it is a karma that soul has to undergo, right? But he crunched it in a manner. अनुग्रह कहाँ हुआ? अनुग्रह he ensured that he lives. इतना back to back epileptic fit, breathlessness में he would have died. But Periwal थे उनके पीछे, right? Periwal's support was bhakkam. It was like strong. He ensured that the जीवात्मा survives, went through the pain. इसके बाद उसको कभी नहीं होगा. And the second benefit it is अगले जन्म में ट्रांसफर भी नहीं होगा because he's already suffered all of it, right? तो अनुग्रह करते हैं, दर्द हुआ yes, but अनुग्रह करने में भी उनका एक ऐसे एक अलग फॉर्म में उन्होंने अनुग्रह करके गए. तो ये भी एक अनुग्रह ही होता है. डिफरेंट काइंड ऑफ अनुग्रह समझने में देर लगता है. वो 8 घंटा वो माँ पिता ने कैसे बिताया होगा हम सोच भी नहीं सकते हैं. What that son must have undergone सोच भी नहीं सकते हैं. बट हमको लगता है कि गुरु ने छोड़ दिया हाथ. गुरु ने छोड़ा नहीं है. He is still working on us. तो इस ब्यूटीफुल कहानी में I thought I'll end today's session. We are almost at 11:30. I hope I was audible and visible and you all liked the story. Yeah, thank you. हम लोग we'll start with our Hanuman Chalisa and then end the session. Yeah. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ क्लेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी चनवरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति की नी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम रो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर भल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आपै तीनों लोक हांकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरै सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सो ही अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरही हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटई मिटई सब पीड़ा जो सुमिरई हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव खिनाई ये शत बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि सा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। के बोलो हनुमान की जय। धन्यवाद धन्यवाद।